completely. So, good evening. I think this is going to be perhaps our last webinar before CAT, and I think it's going to be a very interactive webinar because can you close the door? No disturbance inside the room. Yes. So before the CAT, the actual CAT paper, this is the last webinar where we are going to discuss in detail as to how to prepare both for CAT, which is 4 weeks from now, more or less, as well as what extra preparation is required for the other examinations, whether it be ZAT, SNAP, IIFT, uh, MICA, IRMA, TIS. Some students will be taking CMAT. So all these examinations. And also we will be having a discussion regarding the B schools, the business schools, how to apply, which ones to apply, at what percentile, which B school to apply. So we are going to be having a lot of interaction where it's going to be a lot of exchange of data, information, and whatever data I have decided that I'll be sharing with all of you, will be sharing it on the platform right now, as well as we will be putting it on the Telegram groups. So you can, even go through it later. Any doubt that will be rising in your minds, you can ask. I can look at the chat window, like I can see when you type there. So, so how I have planned today's session. So today's session is basically a result of a chat, a very long telephonic conversation of some 4 to 5 hours, which started from yesterday and went on till today. And this conversation is between me and a friend of mine, whose name is Rajesh Saraf. He is by education, he has done his BTech from IIT Kharagpur in computer science, and he has done his MBA from IIM Calcutta. And because I was the national director of Time, and Time is a Hyderabad-based organization, so I was posted at Hyderabad. So there, he was also one of the senior team members along with me. So we had a very, long discussion where the discussion was around which are the most commonly asked doubts by students during this period. So we also run time for education chats, T4E chats, where students post their queries, and so which are the most often asked queries. So first we'll start by addressing the most often asked queries, and I bet that a lot of you guys will be able to maybe relate to them. So first query, I hope I'm audible. The first query is, I am able to do 2 DILR sets in 30 minutes. Question is, sir, I am able to do 2 DILR sets in 30 minutes, but in the last 10 minutes, in this section, that is DILR, I am not able to make any breakthrough in any new set. What should I do to overcome this? A very, very valid question. Maths, you have standalone questions. It's like the solitary reaper. But when it comes to DILR, it's a set. And I think the answer to this question only starts with that sometimes I think we are set in this misconception that you have to completely solve the set. Completely solve the set from, the first to the last point to get the answers. Some questions. So try understanding. Even after practicing a lot, maybe you reach a stage. First and foremost, everyone should try to do at least 3 sets. We are looking at, so if you talk about DILR, the first and the biggest, the best news that I can give to you now at the beginning of this session is the amount of progress, the amount of improvement, the learning one can achieve in these 4 weeks will be equivalent to at least 3 to 4 months of studies. This is how it happens in any match, whether it be a competitive match like a sports match or real life matches and all, in terms of business, industry, commerce and all. You will see that those people or those parties which are emerging as very successful, the intensity, the focus, the positivity, the learning curve is so steep in the last phase
that really pulled them to the top. So don't think a lot of people will be tired or they'll be like, we have studied enough now, so just focus on testing. No, I think a lot of time is left. So now if you think, even if 1 day is equal to 4 days, 1 day is equal to 4 days. So 1 day is equal to 4 days. So then you'll be able to understand the value of a single part. So if you divide so if I begin with only strategies for different sets of students, so it will begin with dividing the day either into two halves or three. Either depending on where I am in my preparation right now, I will divide my day into two parts or three parts. So what are these two parts and three parts? One part of the day has to now start going into testing, because what is the point of knowing a lot when you don't know how to put it to use? Things like how to go about question selection, how to go about selection of sets, how to go about selection of passages. These things are very, very important. So no matter how much practice you have done, until you do some real life practice, so that means mocks, you will never be able to understand how to utilize your strengths, utilize your learning and all. So one part of the day has to go into testing and analysis. We'll talk about testing analysis at length also. One part of the day, the second part of the day has to go either in, so some of the students have still not completed the syllabus. They may be knowing that, okay, when we talk about mathematics, arithmetic is the most important part. Then geometry mensuration we have to do. And then in algebra, certain topics. So which are these topics? Logs, every year we can expect 2 questions from logs. And log is fairly simple. It's very formula based. 656 formula is there. If you understand it well, you won't have a problem. Out of 2, at least you'll be able to answer to one of the questions. Then quadratic equation is so simple. We talk about alpha plus beta, alpha into beta, sum and coefficient of terms, very basic things and all. So that also has a very good chances of coming. And then we can talk about to an extent we can talk about certain other topics in algebra which are not very difficult to understand. So you can just do the basics and move. For example, one of the chapters is special equations in your study booklet, the basic essence. You can just do that chapter. You don't need to do extra on it. Extra, like in algebra, so some students, if they are looking for, okay, how to go about it, maybe I don't have that much time, what to begin with. So first to begin with indices, logs and surds. Then you can go into quadratic equations. Then you can, even if you're looking at functions also, you don't have to go that deep sometimes. You will be able to answer few questions. Who are the students who I am referring to right now? Who are completely like, some of the students I know, like maybe they are getting into the CAT mode, they have just begun 10 days, 15 days ago. For those kind of students, they need 3 parts. Those students who are already preparing for CAT for quite some time, and maybe they have finished the lot 1 booklets, the basic material they have finished, they have taken few sectional tests and all. For them, the day has to be divided into 2 halves. For those who are still, they haven't completed the study part. So as I said, arithmetic is very important. That's the reason you see that out of the 3 math booklets, 1 booklet which is given to initially, 1 booklet is just devoted to arithmetic. Then geometry mensuration and algebra. In algebra, we talked about logs, which comes most of the time. Then we talked about quadratic equations, and then we are talking about a little bit of functions, special equations. Here, if you look at algebra, a lot of classes are also held for algebra. So if you are in a position where 1 or 2 topics in algebra, something which you are not able to understand at this stage and you're panicking and you're completely lacking in test part, it's okay. Look at the formula part, at least the basic things, and maybe you can move. For example, talking about progression in series. So AP is fairly simple, GP is fairly simple, harmonic also is simple, it just inverse of AP. But still, if you are having a problem, and then in special type of equations and special type of series also you will see where it will be typical type of series. So even if they are difficult, if you have looked at them once in a study booklet or in an AIMCAT or in a SAMCAT or anywhere, then you will know, you'll be able to identify that series. So it's not that difficult. Then
numbers, okay, numbers directly questions cyclicity and remainder theorem, and base system also, it's very difficult, but they're very simple. Base system again is mechanical. In the entire maths part, I discussing with my friend Rajesh today, that in the entire maths part only PNC is a topic which is not mechanical. Mechanical means other parts, other areas, other topics are very like you don't need some application of intelligence. If you know the formula, if you have done your practice, then when you look at an arithmetic question, or you are able to look at a geometry question, and you're able to see that हाँ ऐसे ही type का पहले भी solve किया है, ये इसमें दिख रहा है. Algebra also, it's more or less direct applications, whether it be logs or AP, GP, HP, or whatever, you are going to apply formula there and you're going to get the answer. Probability has not been coming in the paper, but you can still do it. Numbers standalone does not come. So numbers basically means LCM, FCF, cyclicity, and even number system, your base, hexadecimal, converting into. So these are again mechanical questions. PNC is an area where I know, especially if you're a non-engineer, there is a high chance that in certain questions, because there can be sometimes even after applying a direct formula, how many ways are possible, there can be that one extra way or some exception, so you have to really think, you have to make the case scenario. Maths, go with this thing straight in your head, that I have to really practice arithmetic, geometry mensuration, and certain chapters of algebra very well, so that my 80% of the backbone of maths is done. So if you're weak in maths also, the next 28 days is very, very good. आप एक टाइम पे 3 पार्ट में आप पढ़ाई करें, एक पार्ट में आप टेस्ट लें, एनालाइज करें, एक पार्ट में आप पढ़ाई करें, और एक पार्ट में आप रिवाइज करें. रिवीजन बहुत ही जरूरी है, खासतौर पे उन बच्चों के लिए जिन्होंने लेट पढ़ाई शुरू की है. So one set of students would have not only studied, done the topics, but they would have revised it as well. So it will be like really set in their mind. One set of students would have studied once, but they wouldn't have revised. This revision is very, very important. Otherwise, what will happen? Most of the times you're looking at the question, you're scratching your brain for formula. Maybe you're not able to say that property was there. Okay, what was it? What was it here? So you have to really be very, very particular about the revision parts. So 3 parts of the day for those who are not very well to do right now in CAT preparation. 1 part for testing analysis, which is a must, whether you take a full length test, whether you take an AIMCAT or a SAMCAT. SAMCAT, what are SAMCATs? SAMCATs are actually CRT, SCAT replica tests. So you want to save time. So how to even decide? So some student might ask the question which was asked that sir SAMCAT भी है, AIMCAT भी है, पिछले 10 साल के CAT पेपर्स भी हैं, और इंटरमीडिएट और एडवांस सेक्शनल टेस्ट भी है. तो हम टेस्टिंग जब करें, अगर हमारे पास उतना समय नहीं है, हम बहुत लेट प्रिपरेशन शुरू किए, वी आर स्टार्टेड वेरी लेट, सो क्या कौन सा मटेरियल पहला करें? वेरी सिंपल. अगर आप पिछले 10 साल के कैट के पेपर कर रहे हैं, तो सैमकैट क्या है? कैट रेप्लिका ही टेस्ट है, तो फिर वो दोनों क्यों करेंगे अगर आपके पास टाइम नहीं है तो? The SAMCATs are built, developed on the lines of the CAT paper, last 10 years CAT paper. So if you're doing last 10 years CAT paper, then maybe you can skip the SAMCATs. AIMCATs you definitely need to do for the variety. It gives you exposure to a variety of some new types of questions, also some change in the number of questions. Right now, okay, we are going with the assumption 24, 22, 24, that is 70, but it can be 80 also, it can be in 60s also. We don't know, but yeah, probably we are expecting maybe around 70, but let's see what happens. See, 2-3 questions here and there per section won't matter to you as well, so you don't need to get scared by seeing a different type of question, total number of questions other than 70 on the board there. So some things you have to keep in mind. How do you divide the day? Every day is very important. Every part of the day is very, very important. The other set of students who have already done the lot 1, they are into like sectional tests, and lot 2 maybe also they have finished partially, they're doing lot 2. So 2 halves they can. So what they have to do in these 2 halves? 1 half of the day is going to be in test taking and analysis, where we'll discuss in some time what kind of analysis I'm talking about. Second part of the day, sometimes they need to work on that weaker section by either taking a sectional test, because see, the more you study in test format, it is better for you, because you will understand that okay, maybe this question or this set में ऐसे कर रहा था, लेकिन टेस्ट में इतने टाइम में ये तो सही नहीं है तरीका करना, तो मे बी ये प्रायोरिटी में सेकेंड राउंड में आएगा. बिकॉज अभी
One of the questions that was asked also, frequently to us was, what, like, should we scan the paper now that the sectional time limit has reduced from 1 hour to 40 minutes? So should we scan the paper, because where is the time for scanning? So one, you have to understand that one important point is that when we talk about scanning, we don't talk about doing the paper. Some students think scanning the paper, चलिए 5 सेट है या कुछ ऐसा है तो कोई सेट दिख रहा होते तो करने भी, वो तो स्कैनिंग नहीं हुआ ना, दैट इज नॉट स्कैनिंग। कोई आदमी ऐसा तो नहीं कर सकता कि 40 मिनट का पेपर है, 5-10 मिनट स्कैन कर रहा है। अगर आप पेन चला रहे हो, एज पर माय फ्रेंड आल्सो राजेश सर, आप अगर आप पेन चला रहे हो इसका मतलब आपका हो रहा है, बट होना नहीं, करना नहीं है। आप स्कैन कर रहे हो पेपर को, आप पेपर कर नहीं रहे हो, क्यों स्कैन कर रहे हो? अरे देखें कहाँ क्या है, क्या दिया है, किस तरह का क्वेश्चन दिया है, आप स्कैन कर रहे हो अपना, अचानक से लास्ट में दिखा रहे यार ये तो सबसे अच्छा है, मतलब मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग एरिया है। आपको पता रहेगा क्या है पेपर में। पेपर में जब आप स्कैन करते हैं तो इसका यही मतलब नहीं है कि आप बिना पढ़े पढ़े जा रहे हैं, आप देख रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, बट आप कर नहीं रहे हैं। और आपको याद रहेगा कि अच्छा इस तरह का सेट था, इसमें इस तरह का पैसेज यहाँ पर था, इस तरह का ये था। प्लीज अंडरस्टैंड, विदाउट स्कैनिंग यू विल नेवर गेट द कॉन्फिडेंस। ये तो वैसे ही है कि कोई पानी में डीपर, आप गए हो सी में नहाने के लिए या रिवर में नहाने के लिए गए हो, आपको ठीक से डेप्थ पता नहीं है, तो आप जैसे जैसे आगे जाओगे आपको डर लगेगा, बिकॉज रिवर में तो अचानक से ही देयर विल बी अ फॉल। So because of the uncertainty, you will never have the confidence, and you will never have a strategy also as to how will you go about in the next 35 to 37 minutes which are left। 2-3 मिनट लगता है पेपर स्कैन करने में, ज्यादा से ज्यादा आपको उसमें देखना है कहाँ क्या है और है क्या पेपर में। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सरप्राइज है, क्या है, मतलब ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि भाई कुछ इंपॉर्टेंट था छूट गया, या फिर जो मुश्किल वाला पार्ट था उसमें ही शुरुआत में दिमाग लगाना चालू कर दिया, उससे तो बहुत समय बर्बाद होगा। और इस पेपर में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, समय कम है तो समय बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि समय कम हुआ ना, व्हाट इज लेफ्ट, लेस नाउ, टाइम इज लेस, so you can't waste time in that। very important to scan the paper। scanning does not mean doing, you're not be solving, you're not be getting one question right। फिर लोग बोलते हैं कि ऐसे ही सर क्वेश्चन मानिए 70 नहीं होता है, 70 से ज्यादा होता है, तो टाइम पर क्वेश्चन तो घट गया पुराने पेपर के मुकाबले में। तो टाइम पर क्वेश्चन घट गया है, उसके बाद आप बोल रहे हैं कि, उसके बावजूद आप बोल रहे हैं कि स्कैन करिए, उसमें भी टाइम वेस्ट होगा। आप जब स्कैन कर रहे हो, कोई क्वेश्चन देख रहे हो, कोई सेट देख रहे हो, या कोई पैसेज को भी सुपरफिशियली देख रहे हो, है क्या किस पैसेज किस चीज के ऊपर है, तो जब आप वापस उसको रिविजिट करोगे तो वो टाइम भी तो ऐड होगा ना उसको सॉल्व करने में। इट गेव यू सम आइडिया, you did comprehend it to an extent। so don't this one very important thing, especially जो बच्चे बहुत पैनिक करते हैं, बहुत डरते हैं, बहुत फियरफुल हैं, उनमें हिम्मत नहीं होती है स्कैन करने की। उनको लगता है यार कुछ कहीं चलो चलो शुरुआत से ही सॉल्व कुछ मिल जाए। डोंट बी लाइक दैट। नो द फील्ड। आप क्रिकेट खेलते होंगे, बैट्समैन होंगे, जाएंगे देखेंगे कौन फील्डर कहाँ पर खड़ा किया है, क्या किया है, इधर किया है, फिर अपना आप सोचेंगे किस तरह से मेरे को अपना सर्कुलेट करना है हिट्स को, शॉट्स को। सिमिलरली बिना पेपर समझे हुए, सेक्शन समझे हुए सीधे डुबकी मारना, इट्स लाइक यू डोंट नो वेयर यू विल बी लैंडिंग, सो बी वेरी पर्टिकुलर। अच्छा, दूसरा, there are some students who have started asking doubts, but like there is so much to, they're asking about any tips about the morning slot। My exam is in first slot, how to increase my efficiency in morning as I am conditioned to afternoon slot। ये सब देखेंगे, रुक जाओ सार्थक, पहले जो मोस्ट पॉपुलरली आस्क्ड क्वेश्चंस है उनको देख लिया जाए। रहेंगे हम लोग को जरूरत पड़ा तो 9 बजे तक भी रहेंगे, लेकिन वी विल एड्रेस ऑल दी क्वेरीज। ये जो मॉर्निंग आफ्टरनून स्लॉट है वो मैं क्विकली कवर कर देता हूं। भाई बहुत सिंपल है, योर बॉडी इज यूज्ड टू आफ्टरनून स्लॉट, गेट इट यूज्ड टू मॉर्निंग स्लॉट इफ यू हैव मॉर्निंग स्लॉट। इफ योर बॉडी इज यूज्ड टू स्लीपिंग इन द इवनिंग or playing in the evening or partying in the evening, and if you are having an evening slot, then you have to get yourself used to, how to get used to test, उसी समय टेस्ट लेना है आपको। जो भी टाइमिंग मिला है एक्चुअल कैट का, आपको उसी समय टेस्ट लेना चाहिए हर दिन, अभी से ही। अगर आप नहीं लेते हैं तो इट्स अ वेरी बिग लॉस। मॉर्निंग में है तो मॉर्निंग में ऐसे उठते के साथ तो टेस्ट नहीं लेंगे, तो थोड़ा पहले उठेंगे, थोड़ा अपने बॉडी को फ्री करेंगे, नेचर
क्लॉक को वैसे एडजस्ट करेंगे, स्लीपिंग आवर्स वैसे फाइन ट्यून करेंगे, बिकॉज ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आने वाले 4 हफ्ते में दो ही चीजों पे फोकस करना है। एक तो आपको ऑफ कोर्स प्रिपरेशन पे फोकस करना है और दूसरा टेस्ट टेकिंग स्ट्रैटेजी पे फोकस करना है। ये सब जो हम बातें कर रहे हैं टेस्ट टेकिंग स्ट्रैटेजी की बॉडी क्लॉक को सेट करने, सब टेस्ट टेकिंग स्ट्रैटेजी की पार्ट होता है। ये सब ये कोई मतलब इस तरह का बात नहीं है। एक मैंने देखा कैट का एक्सपर्ट अपने आप को कहता है प्रेजेंटेशन में कि मेडिटेट कीजिए। मैंने भी आज तक मेडिटेट नहीं किया, तो क्या कोई मेडिटेट नहीं कर रहा है तो जबरदस्ती अभी बैठ के क्या मेडिटेट करने लगेगा? उसको मेडिटेशन में क्या वहां पर अल्फा बीटा गामा आने लगेगा? सो ये सब नहीं, पैतरे इस्तेमाल करो, रिलैक्स करो, अपने बॉडी क्लॉक को यूज करो। हमारा बाथरूम जाने का टाइम है, उठने का टाइम है, फ्रेश फील, फ्रेश माइंड, फ्रेश बॉडी। ऐसा नहीं कि उधर बैठा एक स्टूडेंट के साथ मेरा हुआ था, बहुत प्रिपरेशन किया, जब तीसरे सेक्शन पे वो पहुंचा तो उसको बाथरूम जाने का हो गया, उसका पूरा क्वांट सेक्शन चला गया खराब इसके कारण। सो ये बहुत कॉमन है, मतलब ये मजे वाली बात है, हंसी वाली बात है, लेकिन ये बहुत कॉमन है। सो यू हैव टू सेट योर बॉडी क्लॉक एज पर द कैट एग्जामिनेशन। तभी तुम वहां पर जाओगे तो यू विल बी लाइक कंप्लीटली अवेयर, टोटली अवेयर कि हाँ हाँ। नहीं तो वहां गया जिसको नींद, कुछ बच्चों को रात को पढ़ने का आदत है, सुबह सुबह टेस्ट है, नींद में वहां पर होगा, झूल रहा होगा। डोंट डू दैट। कम टाइम का मतलब हर आदमी को अपनी जो कलेबाजी है दिखाने के लिए और कम टाइम मिल रहा है, तो कंपटीशन बढ़ा ना, जाहिर सी बात है। कम टाइम को बोल देगा 5 मिनट में करके दिखाओ कुछ, तो और कंपटीशन बढ़ जाता है। इतने कम टाइम में प्रूव करना है अपने आप को, आपको कम टाइम में इस बार अपने आप को प्रूव करना है, जिसके कारण स्ट्रैटेजी बना के जाना, टेस्ट टेकिंग स्ट्रैटेजी भी बना के जाना अच्छा तरह से, जितना आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। तो ऐसे तो पहले बीए और बाद में आरसी करना सही नहीं होता है, लेकिन क्योंकि लास्ट में तो आप, जैसे लास्ट में बीए आरसी पिछले बार भी हम डिस्कस कर रहे थे वेबिनार में, लास्ट के 2 मिनट में आप कौन सा ही आरसी पढ़ दोगे और कौन सा ही सवाल कर लोगे आरसी के अंदर। तो बीए बाद में करते हैं, आरसी पहले करते हैं, बट आरसी का एक टाइम आउट होना चाहिए, नहीं तो बीए ठीक से नहीं कर पाएंगे। एवरीथिंग नीड्स टू हैव अ टाइम आउट। टाइम का जो प्रेशर है आपके पीछे एकदम लगते रहना चाहिए। You should be constantly. That's the reason I'm telling you everyday testing. Whether you take a topic-wise test or a sectional test or a full-length test, every day coming to a testing point is very, very important. Where you understand that it is not only about getting the answer right, it is about selecting which questions to answer first and then getting them right. It is not कि भाई चलो लगाते जाए जो सही निकला, ऐसे आप नहीं कर सकते हैं। So get your body clock set right. और एक दिन प्रॉब्लम होगा, 2 दिन नींद आएगा, 3 दिन नहीं होगा, 4 दिन नहीं होगा, 7 दिन 8 दिन में तो हो जाएगा। कम से कम एग्जाम तो 4 हफ्ते बाद है, तब तक आप सेट हो जाओगे। ओके, ये डीआईएलआर वाला बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था। बच्चा पूछ रहा है कि 30 मिनट में तो सर 2 सेट कर पाता हूँ और तीसरे में जब तक होता है घंटी बज जाती है। आपको अपना स्पीड बढ़ाना होगा। इसका मतलब और क्या ही मतलब है, पहले तो प्लानिंग करेंगे, स्कैनिंग करेंगे और आपको अपना स्पीड बढ़ाना होगा। आप बोलेंगे सर कैसे स्पीड बढ़ाएं, हाउ डू आई इंक्रीज स्पीड? सो सबकॉन्शियसली अगर आप हर दिन टेस्टिंग, आप कब सबसे ज्यादा, आपको 3 सिनारियो देता हूं मैं। सोचिए आप एक रनर है, स्प्रिंट करते हो या फिर लॉन्ग डिस्टेंस रनर हो। जब आप ऐसे कैजुअली प्रैक्टिस करते हैं उसमें आप अपना बेस्ट देंगे, कि जब डेमो रन्स हो रहा है, हिट जिसको कहते हैं, उसमें आप अपना बेस्ट देंगे, या फिर एक्चुअली जब फाइनल हो रहा होगा उसमें आप बेस्ट देंगे। तो ऑफ कोर्स आप जैसे टेस्टिंग के पास आते जाओगे अपना बेस्ट देते जाओगे। सिमिलरली अगर आप इस पॉइंट पे जितना टेस्टिंग मोड पे लोगे, आरसीबी टेस्ट फॉर्मेट में, बीएबी टेस्ट फॉर्मेट में, डीआईएलआर भी टेस्ट फॉर्मेट में, कॉन्ट भी टेस्ट फॉर्मेट में, तो इससे एडवांटेज क्या होगा, आपका स्पीड सबकॉन्शियसली बढ़ता जाएगा। अगर आपने 28 दिन टेस्ट लिया, यू हैव ड्रास्टिकली इंप्रूव्ड योर स्पीड। तो फिर आप ये नहीं बोलोगे कि सर 2 सेट कर पा रहा हूँ, तीसरा सेट नहीं हो पा रहा है, 40 मिनट हो जा रहा है, लास्ट 10 मिनट में एक सेट नहीं क्रैक कर पा रहा हूँ। आप बोलोगे सर 3 सेट हो जा रहा है, चौथे सेट में दिक्कत आ रही है करने में। और इसमें भी आप समझिए, एक है आप सेट समझे, पूरा सेट क्रैक किया, सब आंसर कर दिया। टाइम कम है, जब टाइम कम बच रहा है तो पूरा सेट नहीं क्रैक करके अगर 2-3 सेट बचे तो आप उसके क्वेश्चंस देखो, कोई ना कोई कुछ तो क्वेश्चंस होंगे जिसके लिए आपको पूरा सेट नहीं क्रैक करना पड़ेगा। सो इस टाइप अगर मानिए 5 सेट है या 6 सेट आए पेपर में, तो आपने 3 तो ऐसे समझ लिया, पूरा उसमें टाइम दिया, कर लिया जो आपको 3, 5 में 6 में ज्यादा आसान लगा।
फिर जो बचा 3 सेट भी है और मानिए 5 मिनट बचा है, आपको क्या कोशिश करना है कि उसमें क्या 2 सवाल कहीं इधर उधर दिख रहे हैं जो थोड़ा बहुत देख के सेट मेरे को लग रहा है ये है, तो यू कैन गो फॉर इट। जो बच्चे देखिए अभी इतना टाइम है कि आप सेक्शंस में 97 98 99 परसेंटाइल ला सकते हैं। भले अगर आप उतनी पढ़ाई नहीं की, आप टॉप नहीं कर पाओ कि 97 98 99 परसेंटाइल तक पहुंच सकते हैं सेक्शन में, तो कम से कम आपको इस तरह से अपनी डीआईएलआर की तैयारी करनी है कि 10 सही करने हैं। मानिए 22 आता है, 24 आता है, जो भी है सवाल, आपको कम से कम 10 सवाल कोशिश करना है सही करने का, तो मुझे लगता है आप 99 परसेंटाइल आराम से डीएलआर में पार कर लोगे। सिमिलरली क्वांट में अगर आप अरिथमेटिक में बहुत स्ट्रांगली अपना बना रहे हैं, अभी इतना 4 हफ्ता अरिथमेटिक स्ट्रांग किया है, ज्योमेट्री मेंसुरेशन स्ट्रांग किया है, अलजेब्रा में लॉग्स हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो गया, एपीजीपीएचपी हो गया, थोड़ा फंक्शन, थोड़ा स्पेशल इक्वेशंस देख लिया, तो मुझे लगता है कि आपका बैकबोन स्ट्रांग रहेगा, आप उसमें भी 97 90 99 परसेंटाइल ला सकते हो अच्छा परफॉर्म करके। बीएआरसी में सेम थिंग, डोंट जंप, पहले तो आपको बीए करना चाहिए कि आरसी, मैंने बताया कि आप लास्ट में आरसी कर नहीं सकते हैं, गलती कर देंगे, पता चला ऐसे ही बीएआरसी में लोगों को एक्यूरेसी का इश्यू होता है, उसमें अगर आप फर्दर बहुत गेस मार रहे हैं, लास्ट में आरसी में गेस मार रहे हैं, तो और आपका एक्यूरेसी खराब हो जाएगा, पेपर खराब चला जाएगा। बीआरसी में हाई नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स एंड कोई बहुत अच्छी एक्यूरेसी भी नहीं किसी की हो सकती है कि 90% 100% एक्यूरेसी कर लेगा, अपना बेस्ट फाइट मारना है आपको। एक कॉमन सवाल पिछले बार भी मैंने डिस्कस किया था कि सर जो ऑप्शंस है, 2 ऑप्शंस है बहुत ही क्लोज हो जा रहे हैं, तो क्या करें, तो मैंने देखा कि बहुत लोग ऑप्शंस ही सोच के आंसर देते हैं, ये नहीं कि पैसेज पढ़ें, दोबारा फिर पैसेज पढ़ें। नाम है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, मतलब कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द पैसेज, कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द क्वेश्चंस, क्वेश्चंस पे फोकस नहीं है, कॉम्प्रिहेंशन, क्वेश्चन नहीं समझ रहे, पैसेज नहीं समझ रहे, ज्यादा ऑप्शंस पे ध्यान दे रहे हैं। अब जो पेपर सेट किया होगा उसने पहले सही आंसर बनाया होगा और फिर उसके इर्द गिर्द बाकी 3 गलत अपने आंसर बनाए होंगे, तो इसीलिए ऑप्शंस पे ज्यादा देखोगे पहले ही शुरुआत में ही, तो कंफ्यूज तो होना बहुत ही मतलब इजी होता है, तो डोंट डू दैट। कॉम्प्रिहेंशन इंप्रूव करो, फिर बोलोगे सर कैसे कॉम्प्रिहेंशन इंप्रूव करें, स्पीड कैसे इंप्रूव करें, प्रैक्टिस करें, टेस्ट लें, आप टेस्ट लेंगे फिर एनालाइज करेंगे, जितने अच्छे से एनालाइज करेंगे समझेंगे, तो कम से कम उस तरह का पैसेज, उस तरह का मैथ्स क्वेश्चन, उस तरह का डीआईएलआर सेट आएगा तो गलत नहीं होगा। आप 28 दिन टेस्ट लेते रहोगे तो आपको बहुत फेमिलियर चीजें पेपर में दिखेंगी। So if you even are not very well to do right now in terms of skill, aptitude skill, but you have this tendency where even if you're not scoring very well in the mocks, but you're analyzing wherever you're going wrong, analyzing 3 तरह का एनालिसिस है। पहला एनालिसिस, जो सवाल करने चाहिए थे और मैंने किए। दूसरा, जो सवाल मैंने किए लेकिन बाकियों ने नहीं किए क्योंकि वो मुश्किल था, मैंने किया बाकियों ने नहीं किया, इसलिए आपके एमकेट में भी इजी मीडियम डिफिकल्ट करके आता है। तीसरा, जो सवाल सबने किया, आसान सवाल या मीडियम थोड़ा बहुत, मैंने नहीं किया। ये 3 पहला आपका एनालिसिस है, यानी कि सबसे पहले तो आपका बल्क स्कोर किसमें बनता है, बल्क स्कोर डुएबल क्वेश्चन से बनता है, तो वो डुएबल क्वेश्चन तो आपको सारे करने हैं, तो वो that you know knack in you to go for the right selection of questions. What happened Ashley? Yeah. So the right selection of questions जो है आपका डुएबल क्वेश्चंस, उसको आपको पकड़ने हैं। दूसरा, जो थोड़े बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन, देखिए ट्रैप क्वेश्चंस तो मैं नहीं कहूंगा बिकॉज़ कुछ लोग वो कर लेते हैं, ट्रैप क्वेश्चन है थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन जो आप बाद में भी कर सकते हैं, ऐसा तो नहीं कि आसान छोड़ के मुश्किल सवाल कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर सिली मिस्टेक का क्या मतलब है, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना, मतलब सिली मिस्टेक आप कर रहे हैं, ऐसे ही बहुत बच्चे स्ट्रगल करते हैं कैट पेपर में और सिली मिस्टेक भी कर रहे हैं, तो सिली मिस्टेक पे अपने आप को तमाचा मारिए, मेकअप, बहुत ही सिंपल है। कोई बोलता है कि आरसी का कॉम्प्रिहेंशन कैसे इंप्रूव होगा, सिली मिस्टेक भी कैसे नहीं करें, improve your concentration when you are solving the paper, don't get distracted, don't think about failure, past, present, what will happen, just be in the paper, look at the set, judge the set, हो रहा है तो करो, नहीं हो रहा तो नहीं करो, keep moving। ये इमोशंस के साथ और जो माइंड के साथ जो माइंड गेम है, इसको पेपर के बाद सोचो कि क्या गया, कैसा गया, चलो एनालाइज किए, क्यों हुआ,
पेपर जब सॉल्व कर रहे हैं इसका मत सोचो बहुत ही कोल्ड वे में कि फर्स्ट स्कैन द पेपर, देन चूज योर सेट्स, चूज योर क्वेश्चंस, एंड ओवर द नेक्स्ट 4 वीक्स ट्राई टू मेक योर चॉइस एज गुड एज पॉसिबल। कि गुड का कैसे, हाउ डू यू जज कि भाई मुझे अगर आधा घंटा और भी मिलता है 10 मिनट तीनों सेक्शन में तो मैं कुछ खास ज्यादा स्कोर नहीं ला पाता, बिकॉज आई हैव एग्जॉस्टेड माय स्ट्रेंथ्स, आई हैव टोटली एक्सप्लॉइटेड माय strengths in the paper. So that's how to go about it. Plus कोई ऐसे टॉपिक्स जिनके क्वेश्चंस गलत होते हैं तुम्हारे, तो जैसे मैंने बोला आप अपने डे को सिर्फ टेस्टिंग के लिए यूज नहीं कर सकते। 2 घंटे का तो टेस्ट है, ऐसे भी क्या साथ 2 घंटे का है ना, 1 डे, आई एम जस्ट किडिंग। सो 2 घंटे का तो टेस्ट है, तो आप 2 घंटे का टेस्ट लोगे, 2 घंटे भी एनालाइज कर लोगे, 4 घंटे तो 24 घंटे में 4 घंटे तो बहुत ही कम हो गए ना। इस लास्ट 4 हफ्तों में आपके पास रिवीजन का टाइम है, आपके पास एडिशनल पढ़ने का टाइम है। अगर आपका पढ़ाई अभी भी पूरा, तो इवन दो एक बच्चे ने पूछा कि सर हमने अरिथमेटिक कर लिया है, ज्योमेट्री में मन नहीं लग रहा है, अलजेब्रा में भी मन नहीं लग रहा है, तो क्या काफी है? बोले नहीं काफी नहीं, अभी तो टाइम है ना, तो तुम्हें क्या है ऐसा, क्या करोगे घर में बैठ के? कर लो, जो अरिथमेटिक भी कर लिया, ज्योमेट्री भी कर लिया, अलजेब्रा भी कर लिया, उसके लिए भाई पीएनसी प्रोडक्टिव भी कर लो, टाइम है अभी। यू स्टिल हैव टाइम to divide your day into 3 parts also. If you are really lagging in studies, one for testing, one for revision, and one for new. And those who have already finished their preparation, testing and revision come focusing on that extra section, weaker section. फिर वो थोड़ा स्ट्रांग हुआ तो दूसरे सेक्शन का सुबह 2 घंटे का टेस्ट लिया, फुल लेंथ टेस्ट ले लिया, एनालाइज कर लिया। फिर डीआईएलआर में कमजोर चल रहा है तो शाम को अपना डीआईएलआर का एक सेक्शनल टेस्ट ले लिया और एनालाइज कर लिया। 3-4 दिन ऐसे किया, डीएलआर में थोड़ा ठीक ठाक स्कोर आने लगा, कॉन्फिडेंस आने लगा, लग रहा है वीआरसी भाई थोड़ा उतना वीक फील कर रहा हूं, तो फिर फुल लेंथ टेस्ट तो ले ही रहा था, एक अपना वीआरसी का सेक्शनल टेस्ट शाम को दे दिया। You will have to guide your preparation as per what do you think is needed over the next 4 weeks. मतलब ऐसा कोई वन साइज फिट ऑल नहीं है। हाँ कुछ चीजें हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपको टेस्टिंग पे आना होगा। अब ऐसा नहीं कि पहले पढ़ रहे फिर टेस्टिंग भी करिए, पढ़ते भी रहिए, ठीक है। फिर दूसरे सवालों को देखते हैं। इसमें दूसरे एग्जाम्स के बारे में भी पूछा गया है। एक सवाल है कि एनमैट जो पेपर होता है इज नाउ अडैप्टिव, व्हाट शुड बी माय स्ट्रेटजी टू क्रैक इट। एनमैट का एग्जाम था तो पहले उसमें नॉर्मल स्कोरिंग होती थी, अब क्योंकि अडैप्टिव है तो उसमें देखो स्केल्ड स्कोर है, हम वो डिस्कस करेंगे। स्केल्ड स्कोर अडैप्टिव क्या होता है? GMAT, NMAT is conducted by GMAT now. GMAT का भी पेपर अडैप्टिव है। अडैप्टिव का मतलब ये होता है कि सोचिए मैथ्स का सवाल है, सोचिए कैट अडैप्टिव हो जाए, आपका पहला सेक्शन आया इंग्लिश का, 24 सवाल है मानिए, तो पहला सवाल जो आएगा वो एवरेज डिफिकल्टी लेवल का आएगा, फिर डिपेंडिंग ऑन तुम सही आंसर कर रहे हो या गलत आंसर कर रहे हो, आने वाला डिफिकल्टी लेवल या बढ़ता जाएगा या घटता जाएगा। आप सही आंसर करते जाओगे तो डिफिकल्टी लेवल ऊपर बढ़ता जाएगा, गलत करते जाओगे तो नीचे घटता जाएगा। इसमें 2 बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। सबसे पहला, एक मैंने समिट अटेंड किया था जो कि जीमैट के लोगों ने लिया था, जिसमें जीमैट के ग्लोबल डायरेक्टर भी आए थे, तो बोल रहे थे कि इंडियंस का एक बहुत ही गलत बात है जीमैट में कि शुरुआत में बहुत टाइम देते हैं कि सारे क्वेश्चन का सही आंसर निकालना है, और उससे दिक्कत क्या होता है? अब लेवल 3 5 लेवल है, लेवल 5 मोस्ट डिफिकल्ट, लेवल 4 डिफिकल्ट, लेवल 3 इजी, फिर लेवल 2 वेरी इजी, लेवल 1 बच्चे वाला इजी। लेवल 3 से चालू होगा, इंडियन लेवल 3 करेगा, लेवल 4 पहुंचेगा, फिर लेवल 5 पहुंचेगा, फिर लेवल 5 ही रहना चाहेगा। अगर आपको लेवल 5 में रहना है तो आप क्या करोगे? और टाइम, अगर आपको लेवल नेचुरल लेवल नहीं तो आप ज्यादा टाइम दोगे उस पे। आप जितना टाइम शुरुआत के सवाल में दोगे तो बाकी के सवाल जो बाद के सवाल है उसके लिए क्वेश्चन पर टाइम पर क्वेश्चन घट चुका होगा। और अडैप्टिव पेपर में एक पेनल्टी है बहुत बड़ा कि अगर मानिए आपने पेपर नहीं खत्म किया तो आपको पेनल्टी लगेगा, और क्वेश्चन 1 बाय 1 आएगा, क्वेश्चन नंबर 1 आएगा पहले, और आपको कुछ ना कुछ तो टिक करना ही है। ऑप्शन है 4, उसमें टिक करेंगे तो पेपर मूव नहीं करेगा। तो उनका क्या कहना था जीमैट के लोगों का कि ये देखिए एक तरह से साइकोलॉजिकल पेपर है जो आपका जेन्युइन एप्टीट्यूड पहचान लेता है, क्योंकि आप अगर फाइट मारेंगे भी जो आपका लेवल नहीं है, नेचुरल लेवल नहीं है, तो उसमें आपको ज्यादा टाइम देना होगा, आपका पेपर खराब हो जाएगा। So NMAT में भी every question has to be attempted, otherwise you cannot move forward.
plus there is no negative marking in NMAT. And if you find a question to be very difficult, it's okay, select an option and move. Otherwise, you will be unnecessarily screwing the chances of getting right answers to the successive questions. हम लोग ये सब के बारे में डिस्कस करेंगे, एनमैट के बारे में भी करेंगे। एनमैट अभी नहीं लिखना है, एनमैट दिसंबर में दो और फिर जनवरी में दो, दो बार दो, एक बार दिसंबर में दो, एक बार जनवरी में दो। अगर हम जितने भी सार्थक इज हैविंग द रेडी रेकनर, अगर हम जितने भी एग्जाम्स का देखें, लास्ट डेट जो डेडलाइन वाला है पेपर, किसी भी आप देखेंगे किसी भी एग्जाम को नवंबर में नहीं देना चाहिए, कैट एग्जामिनेशन के पहले तक। स्नैप का जहां तक आपको भी पता होगा, अब आप 2 अटेम्प्ट भी दे सकते हैं, कंपलसरी नहीं है 2 अटेम्प्ट देना, बट आप चाहें तो 2 अटेम्प्ट भी दे सकते हैं। अगर आपको 2 अटेम्प्ट देना है तो आपको लेकिन एक फॉर्म फिल करते समय ही ये क्लियर करना होगा कि 2 अटेम्प्ट आपको लेना है। पहला अटेम्प्ट अगर आप लेना चाहें तो 20, अगर 2 अटेम्प्ट लेंगे तो आपको 20 दिसंबर को लेना होगा पहला, और उसके बाद 6 जनवरी और 9 जनवरी के बीच में एक डेट आपको चूज करनी होगी। अगर आप एक बार लेना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स सभी भी ले सकते हैं, 20th को भी ले सकते हैं, 6th को भी ले सकते हैं, 9th को भी ले सकते हैं, लेकिन 2 बार लेना है तो एक उसमें 20th दिसंबर होना कंपलसरी है। कैट के पहले स्नैप की तैयारी नहीं करनी है, हम लोग डिस्कस करेंगे, ऐसा कुछ है ही नहीं जिसकी आप तैयारी करेंगे, इतना कुछ पढ़ने को नहीं है एक्स्ट्रा स्नैप के लिए। एनमैट का भी एग्जामिनेशन 4 नवंबर से 30 जैन तक है, तो आप नवंबर में कैट के समय क्यों लेना चाहते हैं बताइए ना। अब आपको मैं ये भी बता दिया कि एनमैट थोड़ा सा आपको कष्टदायी पड़ेगा क्योंकि अडैप्टिव टेस्ट है। You guys are not used to taking an adaptive test, because in adaptive test you have to like attempt every question and you need a certain difference in the test taking strategy approach between CAT and an adaptive test. CAT is a linear test. ZAT 3 जनवरी को है, CMAT 24 जनवरी को है, MyCAT 2 बार है। माइका का भी हम बात करेंगे, मुद्रा इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन एडवर्टाइजिंग। जो बच्चे मार्केटिंग कम्युनिकेशन में MBA करना चाहते हैं, मार्केटिंग कम्युनिकेशन का मतलब एडवर्टाइजमेंट, जिंगल हो गया, कुछ भी, मतलब जिस माध्यम से आप कम्युनिकेट करते हैं अपने मार्केट को, अपने प्रोडक्ट सर्विस कंपनी के बारे में, सो मार्कॉम, तो इनका 2 बार आप ले सकते हैं, 5 दिसंबर को या 30 जनवरी को। तो 30 जनवरी वाला टेस्ट ले लो, 5 दिसंबर को क्यों लोगे? बिकॉज हम लोग डिस्कस करेंगे माइकैट का बहुत एक्स्ट्रा तैयारी करना पड़ता है, उसमें डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट थिंकिंग पढ़ना पड़ता है, उसमें डिस्क्रिप्टिव राइटिंग है, एसे है और बहुत कुछ है, बाद में पढ़ लेंगे, उसकी क्लासेस कराएंगे हम। We will be conducting, ऐसा नहीं कि कैट हुआ फिर खत्म, मोमेंट का भी क्लास होगा, लेकिन अभी कैट पे फोकस करो। वैसे इरमा जो रूरल मैनेजमेंट के लिए बहुत फेमस, आनंद, इरमा आनंद गुजरात में है, तो इंटीग्रेटेड रूरल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट आनंद, तो फेब 10th से 29th तक का क्या टेंटेटिव है क्या इनका? फेब में है, मतलब तुम्हें कोई एग्जाम नहीं लिखना है अभी नवंबर। इरमा डेट्स आर कंफर्म, फरवरी 10th to 29 कभी भी आप दे सकते हैं। फिर IIFT का भी डेट नहीं आया है, पहले 27 दिसंबर, फिर 10 जनवरी, मतलब अभी पता नहीं है, मतलब कैट के आसपास तो अब नहीं। टिस ने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, जो HR के लिए बहुत ही जाना पहचाना इंस्टीट्यूट है, उसका भी 9 जनवरी टेंटेटिव है अभी। मतलब तुम लोग अभी क्या करोगे, हम लोग फॉर्म फिलिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, थोड़ा बहुत मैं बता दूंगा ये सब एग्जाम के लिए एक्स्ट्रा क्या पढ़ना है और हम लोग पढ़ाएंगे, लेकिन अभी अपना फर्जी का टाइम मत वेस्ट करो, इसमें कैट की तैयारी करो। कैट का अगर शेयर कर सकता है, तुम शेयर कर सकते हो वो जो डॉक्यूमेंट है बच्चों के साथ, लाओ मुझे भी दो। एक डॉक्यूमेंट तुम लोग के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस डॉक्यूमेंट में क्या है कि कैट में आपका जिस तरह का परसेंटाइल आएगा, तो किस तरह के इंस्टीट्यूट्स को अप्लाई करने हैं, क्या इनका फीस है, क्या एवरेज प्लेसमेंट है, क्या इनटेक है, क्या कट ऑफ है, क्या रिजर्वेशन है, ऐसा करके एक हम लोग बनाए हुए हैं, सार्थक शेयर करेगा, तुम लोग को ये टेलीग्राम ग्रुप में भी भेज दिया जाएगा अच्छे से, डोंट वरी अबाउट इट। सो इसमें सार्थक, इफ यू कैन जस्ट, इफ यू कांट शेयर इट आल्सो, यू share the screen and you go to the word doc and you open that word doc. अभी भी ये बताना बहुत ही मुश्किल है कि किसको क्या परसेंटाइल आएगा, क्योंकि अभी 4 हफ्ते बचे हुए हैं। तो तुम लोग, बच्चे लोग, अभी ना ऐसे हड़बड़ाओ मत कि फॉर्म भरना है, फॉर्म भरना है।
तुम लोग के साथ वो भी शीट हम लोग शेयर करेंगे जिसमें फॉर्म भरने के भी लास्ट डेट्स हैं, तो इतना पहले फॉर्म भर के कर क्या लोगे तुम? जैसे कुछ गधे बच्चों ने क्या किया है कि नवंबर में ही एनमैट लिख रहे हैं। अब नवंबर में एनमैट लिखोगे तो मॉक एनमैट भी लिखोगे, कुछ दिन भी जाएंगे। कैट के लिए ही पहले पढ़ लो, कैट में इंस्टीट्यूट देख लो। अगर हम लोग जाएं, आप लोग सबको क्लियर दिख रहा है? ये जो वर्ड डॉक शेयर किया है मुझको तो थोड़ा कम दिख रहा है, स्क्रीन इज ब्लर। मेरे लिए भी वही है सार्थक, क्यों स्क्रीन ब्लर है? देख रहा है सार्थक के सीन? क्या किया है, 98 परसेंटाइल प्लस वाले इंस्टीट्यूट्स को एक साथ रखे हैं, 95 टू 98 परसेंटाइल वाले इंस्टीट्यूट्स को एक साथ रखे हैं, 90 टू 95 परसेंटाइल वाले इंस्टीट्यूट्स को एक साथ रखे हैं, 80 टू 90 परसेंटाइल वाले इंस्टीट्यूट्स को एक साथ रखे हैं। 80 के नीचे जाने से अच्छा है कि तुम कहीं नौकरी कर लो और फिर से तैयारी कर लो। बेसिकली we have institute because 80 to 90 परसेंटाइल वाले जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनका काफी वाइड रेंज होता है। क्या हो गया, क्यों नहीं चल रहा है सार्थक? राहुल देखो एक बार तुम लोग, this has to be, but not everyone is going to be on Telegram. मेल के थ्रू बोलो तो ब्लर नहीं होगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज क्लैरिटी हो जाएगी तुम लोग को, तो फिर तुम लोग को ऐसा किसी से सवाल नहीं पूछना होगा कि सर कौन से इंस्टीट्यूट में अप्लाई करें, क्या करें, कैसे करें। नॉट क्लियर। हाँ अभी थोड़ा दिख रहा है, बड़ा करो। हाँ नीचे जाओ। अब दिख रहा है आप लोगों को? मुझे तो अब दिख रहा है अपने स्क्रीन में। अरे अब तो दिख रहा है, अच्छे से देखो। कुछ बच्चों को नहीं दिख रहा है, ऐसा नहीं कि मोतियाबिंद हो उनको, ठीक से देखो। मेहनत करो, इसमें भी मेहनत करना पड़ता है, देखने में भी। We will share in the Telegram group as well. Don't worry. Just close the door. So of course हम लोग ने 98 के ऊपर ब्लैकी और एफएमएस को रखा है। तो सारे इंस्टीट्यूट्स का आपको एवरेज एनुअल प्लेसमेंट, जो फी स्ट्रक्चर है, इनटेक है, कट ऑफ परसेंटाइल है, रिजर्वेशन है कि नहीं, बिकॉज रिजर्वेशन बहुत हो गया है। 15% रिजर्वेशन है एससी का, 7.5 है एसटी का, तो 22.5% हुआ। 27% है एनसी ओबीसी का, तो 22.5 और 27%, 49.5% रिजर्वेशन हुआ। फिर ईडब्ल्यूएस क्या हुआ, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। इसका मतलब कि अगर आपका पेरेंटल एनुअल इनकम, पापा मम्मी का जो एनुअल इनकम है वो 8 लाख रुपए से कम है सालाना, और इसके प्रूफ है आपके पास, तो आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में है। मैंने इस साल क्या ऑब्जर्व किया, इस साल भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी था, जो आईएम के सिलेक्शन इस साल के हुए हैं, तो उनका एनसीओबीसी जैसा ही कट ऑफ रहता है, मतलब सेम कट ऑफ एज एनसीओबीसी कैटेगरी। तो ईडब्ल्यूएस वाले, बट ईडब्ल्यूएस में एक और क्लॉज ये भी है कि आपका ऐसा नहीं कि सालाना इनकम 8 लाख से कम है लेकिन आपके प्रॉपर्टीज हो, फ्लैट हो या लैंड हो बहुत, इस तरह का नहीं हो। तो ईडब्ल्यूएस का मिला लोगे तो कितना हुआ, 59.5% रिजर्वेशन। तो बच, और फिर डिसेबल्ड का है 5%, वो बोलता है लेकिन वो कैटेगरी के अंदर ही एक सब कैटेगरी है। तो यानी कि जनरल कैटेगरी का भी जो 40.5% बच रहा है उसका 5% जाएगा डिसेबल्ड कैटेगरी में। तो एक तरह से जनरल कैटेगरी का 40% भी नहीं है, विच इज अ फैक्ट। तो इसीलिए बहुत भारी भरकम कंपटीशन होता है ये ब्लैकी और एफएमएस में। लेकिन अच्छी बात ये है कि देखो सीट इसलिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि जनरल कैटेगरी के बच्चे डिसएडवांटेज पे हैं कि उनके पास 40%, सोचो पूरे जितने टोटल नंबर ऑफ सीट्स है उसका 40% भी सीट जनरल कैटेगरी को नहीं जाएगा। लेकिन इसको मैच करने के लिए कि उतना स्क्यू नहीं रहे, हर साल सीट बढ़ाने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल एफएमएस को देखो, दिल्ली यूनिवर्सिटी, एक समय इसका सीट बहुत ही कम था, कुछ 60-70 सीट था, लेकिन बढ़ा के 251 सीट्स किया। सबने अपने अपने सीट्स बढ़ाए। ये तो ब्लैकी है। ब्लैकी में अगर आपको जानना है और जनरल कैटेगरी है तो सबसे पहले आपको थोड़ा इंस्पिरेशन
ड्राइव करना होगा खुद से कि हाँ भाई कुछ करना है, कुछ इट्स फॉर ग्लोरी पर्पस एज वेल, बिकॉज एक बार आप ये साथ इंस्टीट्यूट में कहीं भी जाते हैं तो काफी प्रेस्टीज अटैच होता है, इससे बहुत अच्छा पीयर ग्रुप होता है और आपको एक्सेप्टेंस ज्यादा जल्दी मिल जाती है बिजनेस में भी, और बहुत और एडवांटेजेस होते हैं इसके, तो इसलिए बहुत फाइट मारना पड़ता है। अगर अभी आप लल्लू राम है, मतलब बहुत नहीं आपको अपेक्षा है कि आप कैट में कुछ कर पाओगे, 4 हफ्ते अभी भी बहुत है, 4 वीक्स बहुत टाइम होता है अगर आप उसको पार्ट्स में डिवाइड करते हो, बहुत फाइट मारते हो। आपको मैं बताऊंगा, जब मैं इनिशियल वेबिनार्स देता हूँ कैट का, जब फॉर्म निकलता है अगस्त के अराउंड, तो मेरे वेबिनार में कुछ 1300-1400 रहते हैं बच्चे यहाँ के, लखनऊ कानपुर के। फिर वेबिनार की यहाँ बात कर रहा हूँ, फिर ये जैसे जैसे प्रोग्रेस होता है घटते जाते हैं, जैसे जैसे एग्जाम आएगा और घटते जाएंगे। क्यों? यू हैव टू रियलाइज 70 to 80% बच्चे गिव अप कर देंगे कैट के पहले, मतलब वो होता है ना, बोलेंगे नहीं मेरे से नहीं होगा, हटाओ। 70 to 80%। तो पहले लगे रहना ही, कैट एग्जामिनेशन के दिन तक लगे रहना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है, मतलब यू आर ऑलरेडी अबव 80% टाइम अगर आप लगे हुए हो कैट एग्जामिनेशन तक। फिर लगे रहने के बावजूद अगर आप फाइट मार रहे हो बहुत, नहीं, यू कैन स्विच ऑन दी एसी, नो इशू। सो अगर आप लगे रहे, ऐसा नहीं कि लगे हुए फाइट भी मार रहे हो, तो आपका 90% के ऊपर तो आना ही आना है। फिर बच जाता है ये 95, 98, 99 के ऊपर लाने के लिए। तो इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको जी तोड़ मेहनत करना पड़ेगा, अभी भी टाइम है, लेकिन पॉसिबल है, इट इज वेरी मच पॉसिबल। जैसे मैंने आपको राम बांध दिया एलआर, चलो भाई 10 सही कर लो, प्रिपरेशन ऐसा करो कि चलो शुरुआत में तो नहीं भी हो, लेकिन अच्छे से एनालिसिस करते हुए, सीखते हुए 10 सवाल सही कर लिए तो 99 परसेंटाइल एलआर में पार हो गया। तो ऐसे ही तीनों सेक्शन में कैसे 98, 99 परसेंटाइल, जैसे मेरा एक कैट अटेम्प्ट था, बहुत साल पहले की बात कर रहा हूँ, उतना भी मैं स्ट्रांगली प्रिपेयर था कि नहीं पता नहीं मुझे, तो मैंने ये सोचा कि इंग्लिश में, मैथ्स में, रीजनिंग में, तीनों में कम से कम एक बेसिक 98, 99 परसेंटाइल तो लाना ही है कम से कम। तो मैं स्कोर पे उतना नहीं फोकस कर रहा था, मैं फोकस कर रहा था परसेंटाइल पे। मेरे को लगा कि अरे भाई तीनों सेक्शन में अगर 98, 99 परसेंटाइल आ जाएगा तो ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है टोटल भी 99.5, 99.6 के ऊपर ही जाने वाला है, नॉर्थ जाने वाला है। तो उस स्ट्रेटेजी को लेके मैं तैयारी की, मतलब देयर आर डिफरेंट वेज टू गेट अ हाई परसेंटाइल, कोई वन साइज फिट ऑल, एक किसी चीज का मेरा भी कोई एक तरीका ऐसा काम नहीं होता, सबका अपना स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के अनुसार एक तरीका होगा, एक स्ट्रेटेजी होगी। ये लास्ट 28 दिन में क्या करना है, एक स्ट्रैटेजी आपको इजाद करनी है, एक स्ट्रैटेजी आपको बनाना है, जो स्ट्रैटेजी आपको सूट करता है, आपके प्रिपरेशन को सूट करता है, आपकी स्ट्रेंथ्स को सूट करता है, आपके वीकनेसेस को सूट करता है, जो आपके से मैक्सिमम एक्सप्लॉइट कर लेता है, जिसके कारण टेस्टिंग बहुत जरूरी है। तो ये नहीं कि भाई पीएनसी भी चलो बेसिक फार्मूला से पढ़ लिया, नहीं, फार्मूला पढ़ लिया बेसिक, चलो बेसिक टेस्ट भी लो पीएनसी का, मतलब टेस्टिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। नीचे जाएंगे अगर, तो इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, आपको आसान होगा, इनटेक है, रिजर्वेशन, बिकॉज ऊपर रिजर्वेशन वाले इंस्टीट्यूट से, सरकारी इंस्टीट्यूट से, जैसे नीचे जाते जाओगे कोई रिजर्वेशन नहीं होता। फिर ये दूसरा लेवल आ जाता है आपका 95 to 98 परसेंटाइल में। तो इसमें कुछ कुछ चीजें आपको समझना होगा, जैसे आईआईटी बॉम्बे, नीचे करो भाई, थोड़ा सा नीचे कर दो ताकि ऊपर हेडिंग दिखे, हाँ बस। अब जैसे आईआईटी बॉम्बे, भले लिखा है इसका कट ऑफ परसेंटाइल है 94.5, लेकिन ये प्रोफाइल भी देख रहा है। प्रोफाइल का मतलब सबसे पहले तो एकेडमिक्स भी होता है, ये ऐसे बोलने को है कि प्रोफाइल कैसे आप प्रोफाइल जज करेंगे, कोई आदमी कैसा दिखता है, क्या बैडमिंटन कैसा खेलता है, ये सब थोड़ी देख के आप प्रोफाइल जज करने वाले हैं। प्रोफाइल में सबसे पहले तो एकेडमिक ही का 10th 12th ग्रेजुएशन का मार्क्स बोल रहे हैं, तो आईआईटी बॉम्बे प्रोफाइल भी देखता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर आईएससी बैंगलोर है। अच्छा, एक हम लोग ये भी इसमें शेयर कर रहे हैं कि कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे कि अगर आप क्विकली जा सकते हैं मिस्टर सार्थक, लास्ट के तीसरे पन्ने में, आप देखेंगे इसमें, और लास्ट के उसमें एलिजिबिलिटी, एमबीए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आईआईटीज का, निटी का। तो आप इसको पढ़ोगे तो आप देखोगे बहुत आईआईटी में आप भी अप्लाई कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको बीटेक होना है या बीई होना है, वो सब कंडीशंस दिए हुए हैं, आप भी अप्लाई कर सकते हो। It's not compulsory that you need to be an engineer to apply to all the IITs, और उन सब का हम लोगों ने लिख दिया है कि क्या है, आईआईटी खड़गपुर है, तो नीचे जाइए।
आईटी खड़गपुर में अप्लाई करने के लिए बैचलर डिग्री चाहिए 4 साल का, लेकिन ड्यूरेशन हो। ये नहीं कि सिर्फ इंजीनियरिंग का चलेगा, टेक्नोलॉजी, फार्मेसी, मेडिसिन, कुछ भी 4 साल का चाहिए। या तो फिर वो नहीं है तो मास्टर्स डिग्री भी चलेगा, लेकिन साइंस, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स में होना चाहिए विद मैथ्स और स्टैट्स एट बैचलर्स लेवल। तो मतलब किसी ने सोचो बीटेक नहीं किया या 4 साल का बैचलर नहीं किया है, लेकिन उस बच्चे ने एमकॉम किया है और उसमें मैथ्स भी पढ़ा है बैचलर में बीकॉम में, तो वो उसका पार हो जाएगा। प्लस कुछ और भी सेट्स है कि कम से कम इतने परसेंटेज होने चाहिए। तो ये सब देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आईटी दिल्ली का देखो, बैचलर डिग्री और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन मस्ट अटेन अ मिनिमम ऑफ 3 ईयर ऑफ एजुकेशन आफ्टर कंप्लीटिंग, मतलब कोई भी अप्लाई कर सकता है। इसको एक बार फिर हम लोग ना चेक करके आपको कल तक भेज देंगे, ताकि इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं हो। ऐसे राहुल सर ने इसे बनाया है और उनको मैंने कुछ 4-5 बार चेक कराया है बहुत कुछ, लेकिन एक बार और दिन वो चेक करेंगे, फिर ये आप सबको टेलीग्राम ग्रुप्स में हम लोग भेज देंगे। So in IIT Bombay, if they have a 3-year graduation, it is necessary for them to have a master. They can apply after. वो तो ऊपर लिखा है वो, है ना, आईटी, वो सार्थक इज सेइंग अ पॉइंट रिगार्डिंग आईटी बॉम्बे। तो अगर आप ऊपर जाएंगे आईटी बॉम्बे में, ऊपर ले जाइए आईटी बॉम्बे में, तो उसमें आप देखेंगे कि आपका 3 साल ग्रेजुएशन अगर है, 4 साल नहीं है, तो उसमें आपका एक्स्ट्रा कुछ रिक्वायरमेंट है वो मास्टर्स का। तो वो ये सब लिखा रहेगा, आप पढ़ेंगे आपको सेल्फ मतलब समझ आ जाएगा क्या है। सो वैसे ही सेम आप नीचे जाते जाए, सेम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर भी एक इंस्टीट्यूट है, निटी भी है। निटी के लिए बीटेक होना जरूरी है। तो कुछ ही इंस्टीट्यूट है, देखिए कहां आपको कंफ्यूजन होगा। लेट्स गो बैक टू द सेकंड पेज। आपको कंफ्यूजन होगा आईआईटीज में, निटी में और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर में, और कहीं कंफ्यूजन नहीं होगा। बाकी सब जगह तो सभी अप्लाई कर सकता है, लेकिन ये, और उसमें नीचे नोट में आप देख सकते हैं उसको। अब नहीं ऊपर ऊपर सार्थक, वी विल गो, वी वर इन द लिस्ट, ये लिस्ट है। यस, सो आईटी बॉम्बे है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर है, नीचे जाइए तो आप देखेंगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर का नाम क्यों है यहाँ पर, इवन तो बाकी इंस्टीट्यूट का 26 लाख एवरेज सैलरी है, 21 लाख है, 22 लाख है, इसका क्यों है? क्योंकि इसका फीस कम है, तो इसमें आरओआई भी थोड़ा देखा है, 3,30,000 फीस, लेकिन इनटेक 15 है और यह रिजर्वेशन भी है। 40% ऑफ 15 इज 6 सीट, यानी कि 6 सीट है जनरल कैटेगरी के लिए पूरे कंट्री में, यानी कि एक स्टेट से भी नहीं, रीजन से, ईस्ट रीजन से 2 बंदे गए, नॉर्थ रीजन से 1 आदमी गया, साउथ से 2 गया, इस तरह का है। मतलब एक तरह का नामुमकिन लग रहा है, लेकिन इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा है। इसके लिए इफ आई एम नॉट मिस्टेकन कुछ साइंस और टेक्नोलॉजी का बैकग्राउंड होना जरूरी है, वो रहेगा। वी विल हैव एन अपेंडेज, वी विल हैव एन एनेक्शन which will be sending tomorrow along with this list. All these institutes, what is the special eligibility criterion will be clearly mentioned. फिर आईटी दिल्ली है, आईटी खड़गपुर है, एसपी जैन है, कुछ जगह 3 स्टार है। 3 स्टार का क्या मतलब है कि इसमें एलिजिबिलिटी में कुछ लोचा है, यानी कि आपको देखना होगा आप एलिजिबल है कि नहीं। 2 स्टार का मतलब है कि भाई आपका एकेडमिक अच्छा नहीं है, तो राम राम, मतलब ज्यादा मत सोचो इस इंस्टीट्यूट के बारे में। जैसे एसपी जैन में 2 स्टार है, आई एम इंदौर में 2 स्टार है, आई एम बैंगलोर में 2 स्टार है। 2 स्टार का मतलब है you really need to be good in your 10th 12th and graduation to basically get calls. The NITI, MDI गुड़गांव, IIM शिलोंग, IIM रांची, आप देखोगे जो न्यू IIM से तो 20 IIM है, और इन 20 IIM में 4 कैटेगरी हैं, और चारों कैटेगरी में जमीन आसमान का फर्क है। एक तो हो गया ओल्ड IIM जो 6 IIM से ब्लैक ही है, फिर एक बीच का IIM है, ना इधर का ना उधर का, वो है IIM शिलोंग। फिर न्यू IIMs है जो आपके सामने है, रांची, रोहतक, त्रिची, उदयपुर, काशीपुर, ये जो 6 न्यू आईएम्स आए थे। फिर ये आप देखो, ये 6 न्यू आईएम्स का जो प्लेसमेंट है वो इस कैटेगरी के बाकी के इंस्टीट्यूट से बहुत कम है। कहने का ये मतलब है कि नारसी मोंजी मुंबई में तुम्हें बेटर प्लेसमेंट मिलेगा, और एसआईबीएम पुणे में तुम्हें बेटर प्लेसमेंट मिलेगा आईएम उदयपुर के मुकाबले, आईएम काशीपुर के मुकाबले, आईएम रोहतक के मुकाबले। और लोगों भी दिखाएंगे आपको उनका क्या प्लेसमेंट वगैरह है। लेकिन क्योंकि आईआईएम का टैग है इसीलिए इस लेवल पे है। तो ये आपके ऊपर है, सबका चॉइस है। किसी को ब्रांड चाहिए तो बोलता है नहीं यार वहां पर भले 3-4 लाख ज्यादा मिलेगा, लेकिन चलो एक आईआईएम का ब्रांड है, कुछ ऐसा है। तो डिपेंडिंग ऑन योर चॉइस यू हैव टू। ये तो फ्री के ऐसे भी जो आपने कैट में अप्लाई किया हुआ है, यू डोंट हैव टू पे एक्स्ट्रा हियर।
to apply to these institutes. Next level. फिर ये जो लेवल है ये 90 to 95 परसेंटाइल वाला लेवल है। तो इसमें आप देखेंगे जैसे डीएफएस है, अच्छा खासा प्लेसमेंट ही है, 13 लाख प्लेसमेंट है, लेकिन और आरओआई देखिए कितना हाई है, 30,000 सिर्फ फीस है, लेकिन इनटेक कितना कम है। तो आप जल्दी देखोगे आपको बहुत अच्छा लगेगा, अरे यार ये इंस्टीट्यूट की फीस कितनी कम है, चलो यहाँ चलते हैं, लेकिन वहां सीट्स बहुत कम होंगे। तो इट्स अ टफ फाइट। सो आप इस पे, एक बच्चा था बेवकूफ है, बोलता है सिर्फ मैं सरकारी इंस्टीट्यूट में ही अप्लाई करूंगा जहां फीस कम है। तो मतलब आप अपने अपॉर्चुनिटीज को, ऑप्शंस को पहले ही लिमिट करके एकदम बहुत सीमित कर दे रहे हो। दैट इज नॉट द राइट स्ट्रेटेजी। आप जब फॉर्म फिल करोगे कैसे करना है वो भी हम डिस्कस करेंगे। पहले आपको हम ये जो वर्ड डॉक है ये पढ़ना सिखा रहे हैं। ऐसे ही आप देखिएगा इसमें बेबी आईएम्स भी आ जाता है, इसमें बेबी आईएम्स भी है। नीचे जाते जाओ फिर आईएमटी गाजियाबाद है, इरमा है, आईएमआई है, माइका है, एक्सयूबी है। फिर 80 टू 90 परसेंटाइल। जो 80 टू 90 परसेंटाइल वाले इंस्टीट्यूट है इसके तो नीचे मत जाना। इसके नीचे जाने का मतलब है एक ही फ्रॉड। If you are going to institutes which are below 80 percentile, which accept students below 80 percentile, वो fraud institutes हैं, वहां पर 100% प्लेसमेंट नहीं होगा। फिर तुम अपने फादर मदर रिलेटिव को कि यार मेरा नौकरी लगा दो, मुझे कॉल कर रहे होगे सर मेरे को जॉब में हेल्प कर दीजिए वगैरह वगैरह। डोंट फॉल इनटू दैट ट्रैप। ये लास्ट लेवल है। इस लेवल के नीचे सोचो लेवल नहीं है, पाताल है, सीधे पाताल लोग। देखिए यूबीएच चंडीगढ़ है, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है, एफएमएस बीएचयू है। अगेन क्योंकि सैलरी बहुत ही खराब है एफएमएस बीएचयू की एवरेज प्लेसमेंट, लेकिन उसका फीस 1 लाख रुपए है सिर्फ। आईटी रुड़की है, बिट्स पिलानी है, इसमें देखिए 3-3 स्टार मारा है। क्यों? वही कुछ होगा इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरियन में कि इंजीनियर होना कंपलसरी है या कुछ ऐसा, सब में नहीं है। तो उसके लिए आपको रिफर करना होगा नीचे। एनआईबीएम पुणे, एलबीएस, केजे सोमाया, 4 जीआईएम गोवा, टैपमी, बीआईएम त्रिची, निर्मा, ग्रेट लेक्स, लीबा, वेलिंगर। इसमें भी आपको ऐसा नहीं आईएफएमआर की किसी को 80 टू 90 परसेंटाइल एक्सपेक्ट कर रहा है तो सारे के सारे ही भर दे। अरे अच्छे इंस्टीट्यूट भी इसमें भरो, नीचे के वाले नहीं भरो। इसके बाहर मत चले जाना कैट में। मतलब ये जो 80 टू 90 है वही मैं तो कभी नहीं गया और मैं कभी जाता भी नहीं वहां, ना ही मैं किसी को एडवाइस करता हूँ। 90 टू 95 वाले जो जा रहे हैं, चलो बेचारे अब मजबूरी है, रिपीट नहीं कर सकते, बहुत फाइट मारा, उनसे हो नहीं रहा है। ब्लैकी एफएमएस इज टोटली वर्थ इट। आप अभागे हो तो नीचे वाले में आओगे, जो सेकंड 4 लिस्ट है, इसमें 4 लिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूट है, 80 टू 90, 90 टू 95, 95 टू 98 और अबव 98। और अबव 98 इज टोटली वर्थ इट। 95 टू 98 भी चलो ठीक है, चलेगा, गुड, स्टिल रॉकिंग। 90 टू 95 थोड़ा मतलब नॉट दैट गुड, बट चलो ऐसा नहीं कि करियर इज अनसेफ। 80 टू 90 लास्ट कॉम्प्रोमाइज, मतलब इसके नीचे जाने का मतलब रेड लाइट है, पूरा ही खत्म है, कुछ भी अच्छा नहीं है, नॉट वर्थ इट। एमबीए इज नॉट वर्थ इट एट ऑल। सो प्लीज डोंट डू दैट मिस्टेक। वो भी 80 टू 90 में ज्यादा आप प्लेसमेंट देके, फीस देके ऊपर वाले इंस्टीट्यूट्स पे ही फोकस करो। आज का आपका जो एमकैट का परसेंटाइल है उसके भरोसे मत ये भरो। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन मुझसे पूछा जाता है कि सर 70 परसेंटाइल आ रहा है, अभी क्या करें? अरे सबसे पहले अगर आपको 60-70 परसेंटाइल आ रहा है मतलब कुछ फंडामेंटली रॉन्ग है। एनालाइज दैट मॉक। या तो तुम्हारा प्रिपरेशन नहीं हुआ है तो तुम थोड़ा प्रिपरेशन अपना वो भी करते रहो, या तो फिर तुम इतने डर जाते हो कि क्वेश्चन ही, एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि सर घर पे हो रहा है लेकिन टेस्ट में नहीं हो रहा है, आराम से कर रहे हैं तो हो रहा है। तो जब ये बात पता है तो मत डरो ना। बी इज लाइक समवन इज डिस्ट्रैक्टेड, बी अटेंटिव। अंदर से फाइट मारो, यू विल बी अटेंटिव। सिमिलरली सर ऐसे सॉल्व कर पाते हैं, टेस्ट में नहीं सॉल्व कर पाता, मतलब कि डर लगता है, घड़ी से डर लगता है, फेलियर से डर लगता है, नहीं कर पाएंगे तो डरना छोड़ो, बाद में डरना, पहले अपना टेस्ट लिखो अच्छे से। So be very so this one document will be sharing, ये कैट का डॉक्यूमेंट है। ऐसे ही वो आपको दिखाएंगे, एनमैट का भी बनाया है, स्नैप का भी बनाया है, आईएफटी का भी बनाया है, सब जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं उसका हम लोगों ने बनाया है। 3-4 चीजें। पहला बनाया है कि क्या मतलब क्या टेस्ट स्ट्रक्चर है, क्या टेस्ट पैटर्न है, कितने सवाल आते हैं, क्या मार्किंग है वगैरह वगैरह करके। फिर बनाया है एप्लीकेशन डेडलाइन है कि क्या है, ये सब करके। फिर कौन से इंस्टीट्यूट्स उस टेस्ट के अंडर में, उनका क्या प्लेसमेंट है, क्या सीट है, रिजर्वेशन है कि नहीं है, और कट ऑफ परसेंटाइल क्या है, और एवरेज प्लेसमेंट्स क्या है। ये सब लेटेस्ट है, मतलब एवरेज प्लेसमेंट्स भी जो डाला गया है वो सब 2020 का ही डाला गया है।
So this is a very important document. I hope everyone uses it. This will be sending maybe tomorrow evening for sure. So don't be in a rush. प्लस एक बार अगर आप डेडलाइन का दिखाओ, इनको डेडलाइन वाला एप्लीकेशन डेडलाइन वाला दिखाना बहुत ही जरूरी है। एप्लीकेशन डेडलाइन का दिखा रहा हूँ कि अभी कितना टाइम है, मतलब हड़बड़ाओ मत, हम लोग तुम्हें ना भेजते रहेंगे कि कौन सा एग्जाम, कोई भी इंस्टीट्यूट के एप्लीकेशन, अच्छे इंस्टीट्यूट का, सड़े इंस्टीट्यूट का नहीं कि बोल रहे हो कि भाई कोई बाबा नगरी का इंस्टीट्यूट है उसका सब डेट चला के आपने बताया नहीं, उसका तो बताना भी नहीं है मुझे। जो एग्जाम्स हैं, जो अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, जो पूरा लिस्ट 80-90 परसेंटाइल वाले भी इंस्टीट्यूट्स के बारे में बोल रहा हूँ, वो सबका डेडलाइन हम लोग तुम्हें एक हफ्ते पहले ही भेज देंगे कि भाई आपका डेट खत्म हो रहा है, एक हफ्ते बचा हुआ है, तो कृपया करके जल्दी फॉर्म भरें। अभी कोई जल्दबाजी नहीं है, आप देखो अपने से, इसको बड़ा कर दो ना, ये सबको विजिबल है ये? Is this visible? Yes, I think it is very visible. तो स्नैप लास्ट डेट है 28 नवंबर फॉर्म भरने का है, तो क्यों रो रहे हो? पता नहीं, अभी से नहीं फॉर्म भरना है, 2 बार देना है तो 2 बार दे देना, एक बार 20 दिसंबर का तो भरना ही होगा, फिर 6 और 9 जनवरी में कुछ सेलेक्ट कर लेना अपना। फिर एनमैट, इसका भी 30 नवंबर तक आप एप्लीकेशन कर सकते हो। नवंबर, दिसंबर, जनवरी तीनों महीने एग्जाम लिख सकते हो। 3 बार एग्जाम लिखना वेस्ट होता है, उसको किसी को इतना फायदा 3 बार लिख के तो मैंने नहीं देखा है अभी तक। 2 बार लिखना चाहिए, तो एक बार दिसंबर में लिख लेना और एक बार जनवरी में लिख लेना। दिसंबर में जो लिखोगे तो स्नैप के डेट के आसपास मत लिखना, यानी कि 20 दिसंबर के आसपास मत लिखना, उसको 10 को लिख लेना। एक 10 दिसंबर को अपना ले लिया और एक 6 या 9 जनवरी को ले लिया। फिर ये है आपका एनमैट का। स्नैप का भी हमने ऐसे डिस्कस किया, अभी टाइम है फॉर्म फिलिंग में भी। जैट में भी आप 30 नवंबर तक फॉर्म भर सकते हो, 3 जनवरी को एग्जाम है। उसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं, सिर्फ डिसीजन मेकिंग एक्स्ट्रा पढ़ना है, और डिसीजन मेकिंग पढ़ना अच्छा होता है कैट के बाद, क्योंकि बहुत जगह जहाँ जीडीज होता है या इवन डब्ल्यूएटीज होता है, वहाँ केस स्टडी आता है, और केस स्टडीज ही मतलब बहुत डिसीजन मेकिंग में भी बहुत केस स्टडीज जैसे ही केसेस मतलब रहते हैं, एचआर रिलेटेड या बिजनेस डिसीजन रिलेटेड। अभी से तो कुछ नहीं पढ़ना है। प्लस जो जैट में जीके सेक्शन होता है, उसका वो स्कोर नहीं कंसीडर करते हैं परसेंटाइल कंप्यूटेशन और प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए। जो बच्चे सीमैट लेंगे वो भी 24 जनवरी को लेंगे। माइकैट 5 दिसंबर को मत लिखो, अभी डिस्कस करूंगा, बहुत ही अलग तरह का पेपर है, आपको अच्छा खासा पढ़ाई करना होगा। हम लोग कैट एग्जामिनेशन के बाद माइकैट का सेशन रखेंगे। मेरे जो स्टूडेंट्स माइकैट के टॉपर रहे हैं उनको मैं भी बुला लूंगा, वो लोग भी अपनी स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे, तो आप आराम से माइकैट 2 देना 30 जनवरी को। फिर इरमा आनंद सेम थिंग, इरमा का जीके जो है वो उसका हम लोग सेशन करेंगे। वैसे आप लोग सबको स्टडी गूगल ड्राइव लिंक एक मिला हुआ है, वो भी सार्थक सर चाहे तो शेयर करें, उसमें आप जीके फोल्डर में जाओगे तो आपको टिस्ट जीके और ये सब जीके मिलेगा, बट हम लोग और भी पढ़ाएंगे वो सब, बट अभी मत पढ़ो ये, डोंट वेस्ट योर टाइम राइट नाउ, अभी सिर्फ कैट की तैयारी करो, तो बहुत टाइम है। तो देखिए शेयर कर रहे हैं जीके का, जीके ओमेट, उसमें अगर आप क्लिक करते हैं तो आईएफटी जीके है, ओमेट जीके है, टिस्ट जीके है, बहुत कुछ है, पर अभी मत करो, एग्जाम नहीं है तो पहले से क्यों करोगे, अपना कैट का देखो। इफ यू कैन गो बैक टू द वर्ड डॉक। सिमिलरली आईएफटी, अभी आईएफटी का कुछ निकला नहीं है तो क्यों डिस्कस करें, कैट के पहले कुछ भी नहीं होने वाला है आईएफटी का। आईएफटी में जीके एक्स्ट्रा है, वो हम लोग बात करेंगे, उसका भी डिस्कशन होगा। टिस्ट सेम 9 जनवरी, तो अभी कुछ भी नहीं, फॉर्म फिलिंग के लिए भी अभी बहुत टाइम है, और ये जो डॉक्यूमेंट अभी दिखा रहे हैं ये भी आपको टेलीग्राम पे भेज देंगे हम लोग, तो आपको ऐसा फाइट मारने की जरूरत नहीं है। कैट हाँ फॉर्म भरना है 29 नवंबर के पहले, आप देखेंगे ऊपर जाइएगा अगर सार्थक थोड़ा सा, तो 29 नवंबर के पहले स्नैप 28 नवंबर है, और जस्ट 29 के बाद 30 लास्ट एडमेट है, और जेड का 30 नवंबर है, तो इवन कैट के बाद आप जेड भी भर सकते हो, यानी कि अभी पैनिक मत करो, लेकिन कुछ फॉर्म कैट के पहले हम लोग को भरना होगा। अभी कोई बिस्कुल का फॉर्म नहीं निकला है, ये एग्जाम्स के फॉर्म है, ये बिजनेस स्कूल्स कैट के अंदर हम लोगों ने इतना जो डिस्कस किया उसका कोई फॉर्म निकला नहीं है, जैसे निकलेगा इनफैक्ट हम लोग एक लिंक शेयर करेंगे, वो लिंक पे हमेशा वो इसी स्टडी गूगल ड्राइव लिंक पे डाल देंगे, उसमें हमेशा आप लेटेस्ट डेट्स देख सकते हो, हर एग्जाम का, फॉर्म फिलिंग का, बी स्कूल का आप लेटेस्ट डेट्स देख सकते हो। यस, कमिंग बैक टू दी, एक सवाल एक बच्चे ने पूछा कि सर शुड आई फोकस ऑन बिल्डिंग वोकैबुलरी।
अलग से अब टाइम नहीं है वोकैबुलरी बनाने का कि वर्ड पार में डीजी ले लिए हैं या न्यूज़पेपर लेके अपना वोकैबुलरी इंप्रूव कर रहे हैं, अब उतना टाइम नहीं है। ऐसे भी आप बीएआरसी का टेस्ट लिखते हो, पैसेजेस उसमें रहता है, जब एनालिसिस करते हो तो जो वर्ड्स आपको नहीं समझ आए हैं तो उसका मतलब तो देखना ही देखना है। अलग से ऐसा कुछ भी अभी वोकैबुलरी बिल्ड नहीं करने लगो। प्लीज गिव द ब्रेकअप ऑफ टाइप ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड इन कैट एंड ओमेट्स। मैंने पिछले बार शेयर किया था, पिछले साल के कैट का भी, पिछले साल का, पिछले 4 साल के कैट का एग्जैक्ट ब्रेकअप किस टॉपिक से कितने सवाल आए, उसी के बेसिस पे आपको मैंने समझाया कि बच्चों पहले अरिथमेटिक अच्छे से कर लो, फिर थोड़ा ज्योमेट्री मेंसुरेशन देख लो, फिर अलजेब्रा के कुछ टॉपिक्स देख लो, तो ऐसे ही 70-80% ऑफ द क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। फिर पीएनसी में सारे क्वेश्चन तो मुश्किल नहीं आएंगे, कुछ बहुत फॉर्मूला बेस्ड डायरेक्ट एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है वो कर लो। साथ में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में वही घिसा पिटाई सवाल सब आता है, कोऑर्डिनेट दिया है, डिस्टेंस बताओ, डिस्टेंस है, कोऑर्डिनेट बताओ, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस ही आता है, सिर्फ तो हाइट्स एंड डिस्टेंस देख लेना है, वो सब तो कर ही सकते हैं। In NMIMS registration, which program should be filled? Please give info about। पहले वो कैट वाले हम लोग कर लेते हैं, फिर ओमेट वाले करेंगे। When I try to increase my number of attempts, my accuracy level comes down. What should I do? A very commonly asked question. When I try to increase my number of attempts बढ़ाता हूँ, speed बढ़ाता हूँ, accuracy कम। एक गलतफहमी है ये, वैसे ही है कि कोई धीरे चलाता है गाड़ी तो एक्सीडेंट नहीं होगी और तेज चलाएगा तो एक्सीडेंट होगी, मुझे ऐसा नहीं लगता है। बहुत बार अगर तुम बहुत ज्यादा स्लो चला रहे हो गाड़ी ना, तो दूसरे आदमी को समझ नहीं आएगा, वो जज नहीं कर पाएगा तुम्हारा स्पीड और एक्सीडेंट हो जाएगा। मतलब गाड़ी का एक्सीडेंट होना या ना होना उसको ऐसा कंपलसरी नहीं है कि तेज चलाता है उसका एक्सीडेंट होता है। सेम इज द केस, एक्यूरेसी डज नॉट गेट अफेक्टेड विद स्पीड। एक्यूरेसी हैज टू डू विद सिंसियरिटी, कितना सिंसियरली वो क्वेश्चन कर रहा है, कितना ध्यान देके कर रहा है, डिस्ट्रैक्टेड तो नहीं है, प्रीवियस प्रैक्टिस कैसा रहा है, ये सब के बेसिस पे है। स्पीड बढ़ाना है तो जैसे मैंने आपको बताया, सब कॉन्शियसली अगर आप डेली टेस्टिंग मोड में टेस्ट लोगे तो आपका स्पीड तो बढ़ना ही बढ़ना है, इट इज बट ऑब्वियस, इट्स अ वेरी सब कॉन्शियस। मैं आपको, हो सकता है कुछ बच्चों को विश्वास भी नहीं हो, if I try taking the VARC section, I cannot take more than 30-35 minutes to finish the VARC section, even though I will do a minimum to read, minimum बोल रहा हूँ every passage, मतलब कोई भी पैसेज देखता हूँ, पढ़ता हूँ, फिर से उसको पढ़ता हूँ, फिर सवाल देखता हूँ, 30-35 मिनट लगता है। मतलब रीडिंग स्पीड ठीक है, एवरेज से तो बहुत ही बेटर है। तो इसके लिए मैं ऐसा नहीं कि कोई किताब पढ़ा कि हाउ टू इंक्रीज रीडिंग स्पीड, या फिर बहुत पढ़ा, जैसे अपराजिता मैम है, she is used to reading books, so she would have read hundreds of books, but I don't like reading that much. But because I am someone who अगर मैं कुछ पढ़ रहा हूँ और कुछ में आंसर करना है तो बेटा जल्दी पढ़ो, जल्दी आंसर करो, तो जल्दबाजी के चक्कर में सबकॉन्शियसली बहुत फास्ट रीडिंग हो गई है, बहुत फास्ट कॉम्प्रिहेंशन हो गई है, इट इज सबकॉन्शियस थिंग। आप प्रैक्टिस करते रहो, आपका स्पीड बढ़ जाएगा, और कोई तरीका इसका नहीं है। स्पीड बढ़ने का मतलब एक्यूरेसी कम होना नहीं होता है। एक्यूरेसी खराब है तो मतलब आप कुछ गड़बड़ कर रहे हो, या तो फिर पैनिक कर रहे हो, या फिर आप कुछ ठीक से पढ़ नहीं रहे हो, या तो फिर आपका वो टॉपिक कमजोर है, या तो फिर मतलब आप कंसंट्रेशन ठीक से नहीं कर पा रहे हो। तो दीज आर द थिंग्स। बच्चे बीच बीच में आ रहे हैं, उनको एडमिट भी करते रहो। There is so much material, what material to do आपको मैंने समझाया। एमकैट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सैमकैट्स और सीआरटीज, सैमकैट सीआरटीज ही होते हैं, कैट रेप्लिका टेस्ट होते हैं, तो उससे प्रीवियस ईयर कैट पेपर्स का आपको एडवांटेज मिल जाता है। अब किसको कितना मटेरियल करना वो डिपेंड करता है कि आप अभी कहाँ हैं। कोई बच्चा भी हाल फिलहाल में शुरू किया तो भाई वो लॉट 1 ही अच्छे से पढ़ के रिवाइज करके थोड़े इंटरमीडिएट और थोड़े से एडवांस एक्सेल टेस्ट देके फुल एंड टेस्ट ले ले। कोई लॉट 1 भी कर चुका है, लॉट 2 भी कर चुका है, तो उसको सैमकैट्स भी करने चाहिए, उसको एमकैट्स भी करना चाहिए, उसको एडवांस एक्सेल टेस्ट भी करना चाहिए। डिपेंडिंग ऑन वेयर यू आर, हाउ मच मटेरियल इज पेंडिंग, यू विल बी प्रायोरिटाइजिंग। एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन बहुत बच्चों ने पूछा था, दैट सर आई एम अ जेम, जनरल इंजीनियर मेल,
Also my academics are poor. What should I do in the next 30 days to get into IIM? अगर कोई जेम है और उसका academics कमजोर है, more the reason उसको ज्यादा फाइट मारना है. Basically it's a tougher fight, and for a tougher fight you will have to put a tougher preparation and all. It is but obvious. देखो सबका अलग कैटेगरी है. Here we are not only talking about general and reserved category, but also talking about the academic background that you come from. IIMs में background wise selection होता है, academic background wise selection होता है, academic diversity के भी points मिलते हैं, gender diversity के भी points बनते हैं. तो सबका अपना अपना level है. Of course, GEM का जो level है, general engineering मेल का, वो सबसे मुश्किल level है. तो इसीलिए उसमें preparation ही वैसा. तो आप देखो उनको marks भी ऐसे आते हैं. पिछले साल there were around 43 students who got above 99 percentile who were trained by me. Out of these 43 students, I think 35-36 students were gems. So क्योंकि उनका competition, वो बोलते हैं ना, necessity is the mother of invention. मैं जल्दी वो fast reading इसलिए करता हूँ because मुझको नहीं उतना धीरे धीरे पढ़ना है, मुझको तो ऐसा nature. I want to do it fast. So even if I am driving a car from Lucknow to Delhi, it will not take me more than 3.5 hours, because it's a nature trait that I want to be fast at whatever I am doing. So keep pushing myself. Same is the case. आप जेम हो, आप ज्यादा पढ़ोगे, तो इसको लेके कोई टेंशन का ही नहीं, आपका खुद का ही लेवल आ जाएगा ऊपर. इन क्वेश्चंस के अलावा पहले थोड़ा इधर भी देख लें. कोई ऐसा क्वेश्चन, Sir, I have 80% in 10th and 68% in 12th. Should I apply for 2-star colleges? नहीं बेटा, तुम्हारा नहीं हो सकता. 68% 12th में लाए हो तो 2-star में तो बहुत मुश्किल है. I'm being very honest with you. ऐसे भी 2-star colleges बहुत कम colleges ही हैं, और मुझे लगता है ये colleges weird colleges हैं. क्या 10th देख के 12th लेके कैसे अभी क्यों select कर रहे हैं? Like people change in their life and they acquire new skills. So how can you judge, what was someone? But ये 68%, 75%, ये कोई अच्छे percentages नहीं है. बहुत के तो 50-60 भी हैं. तो ये SP जैन, IIM इंदौर, IIM बैंगलोर, और ऐसे ही और एक दो इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ डबल स्टार मारा हुआ है. उसको एकदम ही पैसे मत बर्बाद करो, उसमें बहुत हाई परसेंटाइल आएगा तब भी नहीं होगा. बट हाँ, एक आप सबको मैं बताना चाहूंगा, एक रूम है जिससे जो बच्चे खराब एकेडमिक ट्रैक रिकॉर्ड रखे हैं वो भी एंट्री मार सकते हैं. अगर आपका बहुत एक्सेप्शनली हाई स्कोर आता है, स्कोर परसेंटाइल को वेटेज नहीं है, कैट के परसेंटाइल को वेटेज नहीं देते इंस्टीट्यूट्स, कैट के स्कोर को वेटेज देते हैं. अगर आपका स्कोर बहुत आता है तो 99.90 पार करोगे तो बहुत स्कोर बढ़ने लगता है. इसलिए आप देखो किसी को बहुत ही हाई परसेंटाइल आ गया है, 99.90 के ऊपर आ जाता है, तो उसको जनरली सारे कॉल्स आ जाते हैं, इवन दो उसका एकेडमिक बहुत ही घटिया हो तब भी, क्योंकि उसको बहुत हेवी स्कोर के इससे मिल गया. इट्स एक्जैक्टली लाइक जो बच्चा लोएस्ट लाएगा कैट में स्कोर वाइज, उसको उन लोग 0 पॉइंट्स मार्क मिलेंगे, और जो बच्चा बेसिकली हाईएस्ट स्कोर लाएगा कैट में, उसको वो अगर मानो 50 पॉइंट्स वेटेज दे रहे हैं आउट ऑफ 100 पॉइंट्स कैट को कोई पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट, उसको पूरा 50 पॉइंट्स मिल जाएगा. फिर रिलेटिव उसके बीच में पॉइंट सिस्टम एलोकेशन होता है. सो ट्राई टू बूस्ट योर स्कोर. अच्छा, अभी क्विकली हम लोग क्या करेंगे कि ओमेट्स का, देयर इज सार्थक, ओमेट्स का एक 5-10 मिनट का डिस्कशन कर लेंगे. IFT से शुरू करते हैं. इफ यू कैन ओपन दी IFT का जो फोल्डर है. 64 न्यू मैसेजेस. मैं तो पुराने मैसेजेस देख रहा हूँ लगता है. I am in morning slot for the exam, but my classes are clashing. तो थोड़ा मतलब तो दिक्कत है तुम्हें. आसपास ही लो. मतलब अच्छा, कुछ बच्चे का ये बहुत जेन्युइन डाउट हो सकता है कि अगर एक चेयर मुझे भी दे दोगे ना, तो मैं पहले क्या करूंगा, बिफोर गोइंग इनटू ओमेट, आई वुड लाइक टू जस्ट क्विकली गो थ्रू द क्वेरीज व्हिच आर देयर. तुरंत इनका क्वेरी जो है वो, शिट यार, आई हर्ट माय सेल्फ. First question that I looked at was मॉर्निंग स्लॉट है, लेकिन मॉर्निंग स्लॉट में कुछ लोगों का नौकरी है, कुछ लोगों का क्लास का है, अपना कॉलेज का क्लास का है, तो ठीक है, उस समय तुम नहीं दे सकते हो, लेकिन बहुत लेट भी उसके आसपास मत करो. मतलब
डोंट टेक द एग्जामिनेशन योर डेली मॉक्स बहुत ही लेट, उसमें आसपास ही लो उस टाइमिंग के। मिनिमम परसेंटेज 10-12 ग्रेजुएशन में क्या होना चाहिए 2 स्टार क्लासेस के लिए? मुझे लगता है 10th में होना चाहिए 90 के ऊपर, 12th में होना चाहिए 90 के ऊपर, और ग्रेजुएशन तो डिपेंड करता है ना कि तुम्हारा स्ट्रीम क्या है। इट रेस्ट ऑफ द ब्लैकी भी मेरे पास है, वो शेयर मैं कर दूंगा कि 6 के जो ब्लैकी हैं उनका क्या क्राइटेरिया है, बहुत अच्छे से टेबल में, नीट टेबल में है, कितना परसेंटेज क्या देते हैं। जो बेस्ट परसेंटेज वेटेज कोई दे रहा है कैट को 60-65% तक वेटेज दे रहा है ब्लैकी में, कुछ ब्लैकी तो 60-65% वेटेज तो बहुत ही अच्छा हो गया, मतलब इट्स अ वेरी गुड वेटेज। How many questions should be right roughly for 99 percentile plus in QA and VARC? देखो जब 34 सवाल थे तो मैं जनरली देखता था जो बच्चा 99 के ऊपर कोशिश कर रहा है VA में, VARC में, तो कम से कम 30 अटेम्प्ट तो करेगा, 30-31 अटेम्प्ट करेगा, 25-26 सही करेगा, 99 तो आराम से पार करेगा। सिमिलरली मैथ्स की बात करोगे तो 2-3 सही कम हो जाएंगे उससे VA के मुकाबले, लेकिन उसके भी अटेम्प्ट्स अच्छे रहेंगे। People attempt a lot in quant and VARC, you have to understand, and in DILR with low attempts but more correct attempts also you can basically I am graduating in civil engineer with stream should I choose? ऐसा कुछ है नहीं कि सिविल इंजीनियरिंग किए हैं तो आप फाइनेंस जाएंगे या मार्केटिंग जाएंगे, ऑपरेशन जाएंगे, HR जाएंगे, सिस्टम्स जाएंगे। 5 एरिया है, इनफैक्ट 6 एरिया है मैनेजमेंट के, वो 6 एक सैबलॉन बोलना था, वो जो 6 एरिया हैं उनमें कोई भी एरिया का आपको आइडिया नहीं है, कोई भी किसी को, जो बच्चे ग्रेजुएशन किए हैं सिर्फ उनको कुछ भी आइडिया नहीं रहता है, तो पहले साल जाते तो पढ़ते हैं ये सब। कोई बोलेगा नहीं फाइनेंस करना है, फाइनेंस करना है, फिर फाइनेंस का जाएगा, उसको फाइनेंस अच्छा नहीं लगेगा पढ़ाई करने में, तो क्यों फाइनेंस लेगा? मतलब यू डोंट हैव दैट मच एक्सपोजर राइट नाउ टू डिसाइड व्हिच स्पेशलाइजेशन यू शुड गो फॉर। बट अनफॉर्चुनेटली जैसे एसपी जैन का फॉर्म, 3-4 ही फॉर्म आप ऐसा भरोगे जहां आपको पहले ही बताना होगा कि क्या स्पेशलाइजेशन में आप जाना चाहते हो, तो उस केस में तुम मुझे कॉल कर सकते हो मेरे नंबर पे 8948933663, कॉल करके इंडिविजुअली डिस्कस कर सकते हो। यहाँ बताना ठीक नहीं है बिकॉज सबका अलग बैकग्राउंड है, तो उसके अनुसार उसको मैं हेल्प करूंगा कौन सा स्पेशलाइजेशन, वो भी अगर वो फॉर्म भर रहा होगा वही एसपी जैन और इस तरह के 2-4। शुड बी अप्लाई, हैव टू अप्लाई फॉर कॉलेजेस नाउ? नहीं, अभी कुछ नहीं करना है तुम्हें, यू डोंट हैव टू। हम लोग आपको डिटेल डॉक्यूमेंट भेज रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक बार एनमैट का डॉक्यूमेंट शेयर करो, एनमैट के जितने भी हैं दस्तावेज हैं सब शेयर किया जाए। तो उसमें पहले तो जैसे नारसी एनमैट की बात करेंगे तो 5 नारसी मोहन के ही इंस्टीट्यूट है, एक है बॉम्बे और बेंगलोर, हैदराबाद, इंदौर, नवी मुंबई, जिसमें इंदौर और नवी मुंबई अभी हाल फिलहाल में ही खुला है, लेकिन लोग ऐसा बोल रहे हैं नवी मुंबई पिकअप जल्दी कर जाएगा बिकॉज वो मुंबई में ही है, तो प्लेसमेंट में उसको उतना दिक्कत नहीं होगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस स्टेज पे अपने आप को कम मत एस्टिमेट करो। हो सकता है तुम अपने आप को कम एस्टिमेट करके सड़े गले इंस्टीट्यूट्स में अप्लाई करने लग जाओगे, डोंट डू दैट, मतलब कोई जरूरत नहीं है वैसा करने का। टेक योर टाइम टू एनालाइज योरसेल्फ, दैट्स द रीजन डोंट बी इन अ रश टू फिल फॉर्म्स, नो द लास्ट डेट अपने पास से। ये तुम्हें कल शाम तक मैं डॉक्यूमेंट भेजूंगा सब चीजों का, तो तुम अपने रूम में लगा दो लास्ट डेट्स का क्या क्या डेट है, बट डोंट बी इन अ रश टू फिल। अभी क्या लगेगा, अरे यार मेरा कहीं नहीं होगा, चल नवी मुंबई भी भर देते हैं, 9-10 लाख रुपए की तो नौकरी लग जाएगी। एक महीने बाद हो सकता है तुम्हारा काफी अच्छा लेवल हो जाए, तुम बोलो अरे हट यार ये सब इंस्टीट्यूट में क्यों अप्लाई करें, नासिमोजी मुंबई में ही फोकस करते हैं। तो और प्लस मुझे ऐसा लगता है बहुत चोरी होती है, ये प्लेसमेंट डेटा में बहुत चोरी है। फॉर एग्जांपल नासिमोजी इंदौर अभी हाल फिलहाल में खुला है, उसका डाल दिया है क्लोज टू 12 लाख प्लेसमेंट वगैरह। मुझे तो लगता है कि पूरी तरह से विश्वास नहीं कर सकते हैं, तो यही दिक्कत होता है। तुम 80 to 90 परसेंटाइल वाले इंस्टीट्यूट में जाओगे तो तुम्हें ये चीज का प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, उसमें से बहुत सारे इंस्टीट्यूट बहुत झूठ बोल रहे होंगे अपने प्लेसमेंट्स के बारे में, सब चीज के बारे में। वहां जब जाओगे तभी तुम्हें पता चलेगा। तो एक ये भी तुम कर सकते हो कि जो ऑर्डिनरी इंस्टीट्यूट्स हैं उसका तुम अपने कोई दोस्त या फिर कोई वहां से पढ़ा है या फिर वहां किसी के पास जाके या फिर इंटरनेट के ही माध्यम से
उनके बच्चों से बात करो कि क्या है, क्या हकीकत क्या है, वो तुम्हें बता देंगे। 30% रिजर्वेशन है गर्ल स्टूडेंट्स का, जो एक बहुत मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ 30% ही गर्ल्स होगा, मतलब कम से कम 30% गर्ल्स लेंगे, तो उससे काफी इस बार भी काफी मेरी गर्ल स्टूडेंट्स हैं जिनका हुआ। आप इसके नीचे आएंगे सार्थक, अदर कॉलेजेस अंडर एनमेट, तो नार्सी मोंजी मुंबई है, फिर बेंगलोर हैदराबाद है, और फिर इंदौर और फिर नवी मुंबई है। और इसके अलावा आप नॉन नार्सी मोंजी इंस्टीट्यूट जो कि एनमेट का स्कोर लेता है उसके तरफ देखेंगे तो अलायंस यूनिवर्सिटी बेकार है, एमआईटी बेकार है, एक्सयूबी है अच्छा, जेवियर यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर, आईएमटी गाजियाबाद जैसा है, कैट में भी आप देखेंगे तो ये 90 to 95 परसेंटाइल वाले कैटेगरी में है, लेकिन सिर्फ एचआर प्रोग्राम का सिलेक्शन एनमेट से है, उनका रेगुलर एमबीए का सिलेक्शन एनमेट से नहीं है। फिर इक्फाई मना, मोदी मना, बीएम मुंजाल, शूलनी, पता नहीं पिक्चरों के नाम है, एसआरएम, थापर, वीआईटी, वॉक्सेन, ये सब सड़े हैं, यहाँ जाने का मतलब है करियर सुसाइड। फिर चितकारा, चितकारा तो कोई जानवर है शायद तक, और फिर यूपीएस देहरादून नहीं, गीतम नहीं, जेकेएलयू क्या है, शिवनाथर कंप्यूटर बनाता है, गीतम, मतलब ये सभी सड़े इंस्टीट्यूट हैं। आपको बेसिकली अगर एनमेट में इंटरेस्ट है तो नार्सी मोंजी मुंबई है, इसके अलावा अगर भरना भी चाहते हो तो नार्सी मोंजी के जो बाकी के इंस्टीट्यूट्स हैं, एचआर में अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप एक्सयूबी एचआर भर सकते हैं, ऊपर जाना एक बार। और इसका बॉकनी करके है, बट वो भी ठीक ही ठाक है, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी भी नहीं है, एक एसडीए बॉकनी है जो कि एमआईएसबी बॉकनी मिलान का एक्सटेंशन सेंटर है मुंबई में, वो भी इसके थ्रू सिलेक्शन करता है। और क्या है एनमेट का, कॉलेजेस अंडर एनमेट के अलावा नीचे जाइए, एनमेट के टेस्ट स्ट्रक्चर में जाइए, ये सब आपको मेल होगा और सब बहुत डिटेल में। एक बच्चे ने लिखा है मोदी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, बहुत अच्छी बात है, हो सकता है कि बहुत बड़ा जॉब लगे मोदी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में पढ़ाई करने से, खुद ही प्राइम मिनिस्टर का नाम है, बताओ। अब लेकिन ये पता नहीं कि कौन सा मोदी है, कुछ एक मोदी वो भी है, नीरव मोदी भी है, तो ये भी देखना है। तो देखो फिर एग्जाम पैटर्न भी तुम्हें ऐसे हम लोग भेज देंगे, कितने सवाल हैं कितने, तो इसमें तुम नोटिस करोगे। अब कैट है, कैट में 120 मिनट है और तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो 70 सवाल। अब एनमेट है 120 मिनट है, 108 सवाल है, एक जगह 120 में 70 सवाल है, एक जगह 120 मिनट में 108 सवाल है, पूरी स्ट्रेटजी बदल जाती है। जहां आपको कैट में थोड़े मुश्किल सवालों में भी डीआईएलआर के बड़े सेट्स में अपना दिमाग लगाना पड़ता है, थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है, इस तरह का एग्जाम में जैसे एनमेट है उसमें आप अपना दिमाग नहीं इतना चला सकते हो। अगर नहीं हो रहा है तो छोड़ो, समय कहाँ है, ऐसे भी अडेप्टिव है, आपको सिलेक्ट करके आगे बढ़ते जाना है, नहीं सिलेक्ट करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन ही नहीं आएगा। तो द स्ट्रैटेजी हैज टू चेंज। कैट का स्ट्रैटेजी हर ओमेट में नहीं चलता है, कुछ ओमेट में आपको बहुत फास्ट होना पड़ता है, बिकॉज यू गेट एक स्नैप है 60 मिनट 60 सवाल, 1 मिनट मिल रहा है आपको पर सवाल, उसमें आदमी कितना ही रिसर्च कर लेगा, कितना ही पढ़ लेगा, क्या कर लेगा। सो फोकस इज कंप्लीटली ऑन स्पीड। कैट में द फोकस इज ऑन स्पीड, comprehension, accuracy, multiple things, but in some of the OMET speed is the most important thing. If you don't get it here then तो you are totally gone. So नीचे जाइएगा, वो बता रहा है अडेप्टिव टेस्ट है और वगैरह वगैरह है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, घर पे भी ले सकते हैं और सेंटर पे भी ले सकते हैं, दोनों ऑप्शन है। एनमेट बाकी किसी में नहीं है, सिर्फ एनमेट एक ऐसा एग्जाम है एमबीए का स्टार जो आप घर पे भी दे सकते हो, बट फिर वही प्रॉब्लम है, घर पे नेट का लोचा हुआ, ये सब का लोचा हुआ तो एग्जाम का पैसा गया। ये फिर एग्जाम तो आप रिशेड्यूल कर ही सकते हो लेकिन आपका पैसा चला जाएगा। तो मैं तो नहीं सजेस्ट कर रहा हूं कि घर पे बैठ के आप एनमेट का एग्जाम दो। और फिर यही क्वेश्चन डिवीजन तो ऊपर बताया ही गया है, 2 घंटे का टाइम है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप सेक्शन सेलेक्ट कर सकते हो कि कौन सा पहले करोगे, इंग्लिश पहले करोगे कि रीजनिंग पहले करोगे, क्या चॉइस ऑफ ऑर्डर ऑफ क्वेश्चन है। और फिर यूनिफॉर्म मार्किंग स्कीम है, यानी कि ऐसा नहीं कि कोई क्वेश्चन का ज्यादा मार्क मिल रहा है या कम मार्क मिल रहा है, सब वैसे ही है। तो जब सब वैसे ही है तो जब मुश्किल सवाल आएगा तो उसको छोड़ोगे ना। When all questions are having the same marking but there is a difference in difficulty level as you go on answering, so it is but obvious you will correct yourself.
यूनिफॉर्म मार्किंग स्कीम, फैसिलिटी टू रिव्यू आंसर, 3 अटेम्प्ट, ये सब देखा है। नीचे जाइए मिस्टर सार्थक। तो ये आपको हम लोगों ने एनमैट का आपको हम टेस्ट पैटर्न भेजेंगे, कैसे पढ़ना है, क्या एक्स्ट्रा पढ़ना है वो भी हम भेजेंगे। फॉर एग्जांपल आप पैटर्न में एक बार ऊपर जाइए। यस, लैंग्वेज स्किल्स है, कॉन्ट है, रीजनिंग है। सिर्फ अलग क्या आ सकता है, वो जो थोड़े बहुत रीजनिंग कैट में नहीं आते हैं, जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वो ऑड मैन आउट हो या कोडिंग डिकोडिंग हो या ब्लड रिलेशंस हो या डायरेक्शंस हो या क्यूब्स हो, क्लॉक्स हो, कैलेंडर्स हो। मतलब कुछ ऐसा नहीं कि आपको बहुत ही एक्स्ट्रा पढ़ना होगा एनमैट के लिए, यू डोंट हैव टू डू दैट। ऐसे जैसे कि क्रिटिकल रीजनिंग है, तो कैट में भी आरसीज में क्वेश्चंस आते हैं कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो होने से ऑथर का जो आर्गुमेंट है बहुत वीक हो जाएगा, स्ट्रेंथनिंग आर्गुमेंट, वीकनिंग आर्गुमेंट एंड ऑल। एनमैट में आपको जो मेन जरूरत पड़ेगा वो टेस्टिंग का बहुत जरूरत होगा। So that is to be done after CAT examination because it is adaptive test। मतलब बहुत लोगों को तो समझ ही नहीं आएगा हो क्या रहा है। adaptive test है, हमें लगा था लीनियर टेस्ट होगा। what is adaptive? तो आपको मैंने adaptive समझाया थोड़ी देर पहले। GMAT क्वेश्चन लेवल adaptive है, GRE सेक्शन लेवल adaptive है, ये CAT की तरह लीनियर टेस्ट नहीं है। ठीक, NMAT है। IFT का भी कुछ निकला नहीं है, बट आप टेस्ट पैटर्न पे जा सकते हैं। IFT का पेपर मुश्किल पेपर होता है। क्यों? एक तो अगर थोड़ा नीचे जाओ, 110 सवाल आते हैं, 110 सवाल आते हैं और 120 मिनट पर। अभी क्या है, कैट में 120 मिनट में आप 70 एक्सपेक्ट करो, इसमें भी 120 मिनट में 110 सवाल प्लस कैट में कैलकुलेटर है, बाकी एग्जाम में कैलकुलेटर नहीं है, आईएफटी में भी कैलकुलेटर नहीं है। और लोग बोलते हैं कि आईएफटी का थोड़ा कैलकुलेशन इंटेंसिव डीआई आता है, मतलब ये पेपर में थोड़ा पसीना छूट जाता है, तो इसकी पढ़ाई करेंगे हम। अच्छी बात है कि लेट है इस बार एग्जाम, बट कैट के बाद इसकी हम पढ़ाई करेंगे, जीके की पढ़ाई करेंगे, कैसे डीआई जिसमें बहुत कैलकुलेशन चाहिए, उसमें वैदिक मैथ्स के फॉर्मूले लगा के और थोड़ा ऑप्शंस देख के उसको हम कैसे फटाफट आंसर ला सकते हैं। ऑफ कोर्स आईआईटी टॉप नॉच इंस्टीट्यूट्स में आ जाता है और आपका इसमें हो जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है। इट्स अ वेरी वेरी गुड। एनी इंस्टीट्यूट वेयर द एवरेज प्लेसमेंट इज मोर देन 20 लाख रुपीस, तो 20 तो लाख किसका दिखा रहा है 2019 का, 2020 का और बेटर होगा। किसी का भी 20 लाख के ऊपर प्लेसमेंट है अगर इंस्टीट्यूट का, तो वो मतलब अच्छा प्लैटिनम इंस्टीट्यूट हो जाता है। इसके नीचे जाए, स्नैप की हम बात करेंगे। स्नैप का पेपर बहुत ही छोटा कर दिया है इन लोगों ने, 60 मिनट, 60 सवाल, 60 मार्क्स। जनरल इंग्लिश सिर्फ 15 सवाल, रीजनिंग 25 सवाल, कॉन्ट डीआई 20 सवाल। तो आप इसमें देखोगे कॉन्ट डीआई रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। 45 आउट ऑफ 60, 3/4 ऑफ द पेपर, 3/4 ऑफ द पेपर तो वो डिसाइडर हो जाता है। प्लस स्नैप भी आसान पेपर होता है, तो अभी से उसका पढ़ने के लिए है नहीं। थैंकफुली अब इसमें जीके नहीं है। एक साल पहले तक इसमें जीके भी आता था, तो उसके लिए अलग से आपको पढ़ना पड़ता था। न कैट में जीके है, न स्नैप में जीके है, न एनमैट में जीके है, और क्या आता है ना। अब जैट में आप बोलोगे जीके आता है, बट उसका मार्किंग ही नहीं कंसीडर होता है, उसका परसेंटाइल भी नहीं निकलता है, कुछ भी नहीं निकलता है। जीके आपको सिर्फ सीमैट, आईएफटी जो बड़े एग्जाम है इसमें देखना होगा, वो आप बाद में देख लेंगे, अभी देख के कोई फायदा नहीं है। ऐसे भी एक बार कैट एग्जामिनेशन खत्म होगा तो हम थोड़ा बहुत जनरल अवेयरनेस के मूड में आएंगे, तभी तो डब्ल्यूएटी और जीडी में भी कुछ कर पाएंगे एक बार जनवरी में जब रिजल्ट निकलेगा। तो अभी होल्ड ऑन, डोंट गेट टू इन्वॉल्व विद ऑल दिस। नीचे जाइए, ये आप देख सकते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, 60 मिनट का टेस्ट है, और सब जगह लिखा भी रहता है क्या, नेक्स्ट हर जगह नेगेटिव मार्किंग है एनमैट को छोड़ के, एनमैट में ही से नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जनरली हर जगह कैट में तो चलिए -1/3 हो जाता है, लेकिन मैक्सिमम जगह आपको -1/4 दिखेगा, जो कि कम है, मतलब -0.25 कट रहा है, कैट में -0.33 कट जा रहा है। नीचे जाए, इसमें हमने पहले बात की, आप 2 बार स्नैप लिख सकते हो, एक बार 20 दिसंबर को लिख लेना, एक बार 3 या 6 तारीख को लिख लेना। लिखना चाहिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं। अगर आप स्नैप के इंस्टीट्यूट्स में जाएंगे, एक बार अगर आप स्नैप के इंस्टीट्यूट्स को खोल सकते हैं साथ साथ, ये भी हम शेयर करेंगे स्नैप के जो इंस्टीट्यूट्स हैं। SIBM पुणे बेस्ट है, उसके बाद SCMHRD पुणे है, फिर SIBM बैंगलोर और SIIB पुणे है, उसके बाद SIMS, उसमें लेकिन 85% रिजर्वेशन उनके लिए जो मिलिट्री बैकग्राउंड के आते हैं, बट वो भी कुछ खास इंस्टीट्यूट नहीं है। अगर आप कायदे से देखोगे सिर्फ 4 हैं तो बहुत। SSBF भी है, बैंकिंग जो करना चाहता है, SIOM भी है जो ऑपरेशंस मैनेजमेंट का इंस्टीट्यूट है, SCIT भी है जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इंस्टीट्यूट है और अच्छा इंस्टीट्यूट है, SITM भी है जो
टेलीकॉम मैनेजमेंट का इंस्टीट्यूट है। यहाँ दिक्कत क्या होगी, एक बार नीचे जाओ सार्थक, इन सब का प्लेसमेंट आपको ठीक दिखेगा। नीचे जाओ, जैसे SCIT का देखो एवरेज प्लेसमेंट है 11.85 लाख, है कि नहीं? SIOM का प्लेसमेंट देख लो नासिक का 15 लाख रुपए, सही देख रहा हूं ना? ये फीस है सेकंड कॉलम है 11.5 लाख है, यानी श्योर हो ना? ये तो 11.5 लाख है, जो कि ठीक ही ठाक है। SIDTM का देख लीजिए 13.2 लाख, SIBM हैदराबाद 12.2, SIBM नागपुर खुला है 13.2। एक बार ऊपर जाओ, SSBF 14.72, मुझे लग रहा है सार्थक गलत मेरे को बता रहा है, ऊपर जाओ। नहीं, थर्ड लास्ट है वही एवरेज प्लेसमेंट है ना। अब देखो ये गलत बता क्यों रहा है, क्योंकि SIBM पुणे का है 20.14 एवरेज प्लेसमेंट। और नीचे जाओ एक बार सार्थक, और नीचे जाओ, अब ये SSBF है, ये लिख रहा है 14.72, बट मैं तुम्हें बता रहा हूं ये फेक है, ये पूरा फेक डेटा लोग शेयर करेंगे, बिकॉज उनके वेबसाइट में लोगों ने मेंशन कर दिया है ये सब फिगर। ये फेक डेटा है SSBF और ये सब का। SIBM पुणे भरिए, SCMHRD पुणे भरिए। अगर आप थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं तो SIIB पुणे और SIBM बेंगलुरु, बहुत खराब तो SIBM हैदराबाद भर दीजिए, बाकी बिल्कुल मत भरिए। एक तो ऐसे भी मैंने आपको बताया नीचे के सारे ही इंस्टीट्यूट झूठ बोल रहे हैं। क्यों? उनको अपना सीट भरना है, उनको अट्रैक्टिव दिखना है। जाहिर सी बात है, अगर आपका कंपटीशन 10 लोगों से है, वो 10 लोग दिखा रहे हैं कि उनका इतना अच्छा है, तो आपको भी मजबूरन दिखाना पड़ रहा है, यही चल रहा है। बट हकीकत सब जानते हैं वहां, बिकॉज हमारे स्टूडेंट्स वहां पढ़ते हैं वगैरह। एक तो कभी भी सेक्टोरल MBA प्रोग्राम कि रूरल मैनेजमेंट में MBA कर रहे हैं, या फिर टेलीकॉम मैनेजमेंट में MBA कर रहे हैं, या फिर रिटेल मैनेजमेंट में MBA कर रहे हैं, ये सब मत करो। डोंट डू एनी इंडस्ट्री स्पेशलाइजेशन। आपका ऑप्शन बहुत लिमिट हो जाता है, वो इंडस्ट्री अच्छा नहीं कर रहेगा तो आपका करियर साफ हो जाएगा। दूसरा, अवॉइड फंक्शनल मैनेजमेंट। फंक्शनल मैनेजमेंट की मार्केटिंग का, फाइनेंस का आप पढ़ो, पूरा पढ़ो, तभी तो CEO बनोगे या बिजनेसमैन बनोगे। यू विल हैव टू नो ऑल द न्यूएंसेस ऑफ मैनेजमेंट। तो वी विल शेयर ऑल दिस विद यू, बट मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं, जो नीचे के लेवल के इंस्टीट्यूट्स है ना, वो बहुत फ्रॉड है। नीचे मतलब जो 80 to 90 परसेंटाइल वाले इंस्टीट्यूट से ज्यादा उन पे ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, तो थोड़ा आपको कदम फूंक के उसमें चलना होगा। तो ये भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। और इनफैक्ट कैट जैसे खत्म होगा, मैं तुरंत एक और वेबिनार दूंगा, जिसमें कैट तो खत्म हो तो कैट के बारे में बात नहीं होगी, स्नैप के बारे में बात होगी, एनमैट के बारे में बात होगी, डिटेल में बात होगी। अभी आप सरदर्दी नहीं लो, क्योंकि आप तो ऐसे भी स्नैप 20 दिसंबर को लोगे, या 6 या 9 जनवरी को लोगे, तो अभी आप जान के कर क्या लोगे? बिकॉज है, वी विल डिस्कस व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ प्रिपरेशन, कैसे करना है, क्या करना है, बट एट अ लेटर स्टेज। और दिखा देते हैं हम जो एनालिसिस वाला है, उसमें टेस्ट पैटर्न एनालिसिस, Z पे जैसे हमने बात किया, VA कॉन्ट DI में कुछ भी आपको नहीं करना है। मेन जो भी पढ़ाई है डिसीजन मेकिंग की करनी है, वो हम आपको पढ़ाएंगे, अलग से हैंडआउट्स कराएंगे, अलग से टेस्ट कराएंगे। फिर से Z में देखो 165 मिनट्स और 75 क्वेश्चंस, यानी कि भरपूर टाइम मिल रहा है ऐसा तुमको लगेगा। कैट में 70-75 क्वेश्चन के लिए 120 मिनट दे रहा है, लेकिन Z में जो 75 सवाल है उसके लिए 165 मिनट बहुत ज्यादा दे रहा है। लेकिन इसमें RC के अलावा डिसीजन मेकिंग भी तो RC की तरह ही बड़े बड़े सेट्स और पैसेजेस हैं, तो समय लगता है, बट विल डिस्कस इट लेटर। एक बार कॉलेजेस आप देखना चाहोगे कौन कौन से कॉलेजेस हैं, इफ यू कैन गो टू द कॉलेजेस, जो Z वाले कॉलेजेस हैं, आपके साथ ये भी हम लोग शेयर करेंगे। एक बार आपको ना सब जितने भी डॉक्यूमेंट्स है उसको थोड़ा दिखा दे रहे हैं कि आप समझ पाओ, इसको आप पढ़ाइए। देखो अलग से Z में सिर्फ एक्सेलर आए हैं, जो कैट में नहीं है, बाकी जो Z में है वो कैट में भी है। तो SP जैन है, XUB है, IMT गाजियाबाद है, परसेंटाइल वाइज इसमें भी हम लोगों ने आपको जो अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं वो छांट के दे दिए हैं। नीचे जाइए एक बार मिस्टर साहब तक, और इसमें भी रिजर्वेशन वाला ऐड कर दीजिएगा। फिर 85 to 90 वाले इंस्टीट्यूट्स हैं, फिर 80 to 85 वाले इंस्टीट्यूट्स हैं, तो ये सब कैट भी लेते हैं। हकीकत में जो टॉप नॉच इंस्टीट्यूट्स हैं, टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट्स हैं, वो एक ही एग्जाम लेंगे। जैसे आप एवरेज इंस्टीट्यूट्स पे आते हो वो सभी एग्जाम लेते हैं, कैट भी चलेगा, जेड भी चलेगा, सीमेट भी चलेगा, नीचे तो कुछ भी और चलेगा। सो बी पटलर विल शेयर दिस एज वेल।
आपका जो परसेंटाइल कैट में जेड में आने वाला है वो अभी आप नहीं एस्टिमेट कर सकते, तो भूल के भी अभी अपना एक नहीं बना लेना कि यहाँ मेरे को हो जाएगा या यहाँ ही करते हैं। अभी रुक जाओ, जैसे जैसे एग्जाम पास आएगी, टेस्ट लेते जाओगे और क्लैरिटी आएगी। इसीलिए कहते हैं कि बिस्कुल फॉर्म फिलिंग में हड़बड़ाना नहीं चाहिए, लास्ट डेट के कुछ दिन पहले तक वेट करना चाहिए। इस एक्ट के बारे में लिखा हुआ है। इसमें एक बहुत विचित्र बात यह है कि आप अगर बहुत सवाल छोड़ते हो तो आपका नेगेटिव मार्किंग बढ़ता है। 8 क्वेश्चन, 8 जो कोई सेक्शन है उसमें 8 क्वेश्चन से जितना क्वेश्चन ज्यादा छोड़ोगे आपका माइनस पॉइंट कितना लिखा था, 0.10 घटता जाएगा। तो इसमें एक ये भी पैतरा है जो और किसी एग्जामिनेशन में नहीं है। तो जो कोई इसमें सेक्शन है, एक बार ऊपर जाइए, बीए 26 सवाल है, आपने 15 सवाल किए सिर्फ, तो आपने कितने छोड़ दिए? आपने 15 सवाल किए तो 11 सवाल छोड़ दिए, तो 8 सवाल में तो पेनल्टी नहीं लगा, बट जो एक्स्ट्रा 3 सवाल आपने छोड़ा उसका 0.1 into 3 यानी 0.3 माइनस हो जाएगा। ये बहुत विचित्र है, पर अभी मैं नहीं डिस्कस करना चाह रहा हूँ, नहीं तो बहुत कुछ है ये सब डिस्कस करने के लिए जैट वैट के बारे में, बट अभी टाइम है, अभी कैट पे ही हम लोग सिर्फ फोकस करेंगे। आप एक बार वापस जाओ, हाँ जैट खत्म करो और नीचे जाइए। या आप देख सकते हैं only 3 sections in that exam are taken into account to calculate the that percentile. GK will not be counted. GK नहीं important होता, IFT में GK important है। 5 key changes in exam pattern इस साल। एक तो NAT basically थीटा, क्वांट में जो थीटा क्वेश्चन है वो अब ZAT में इंट्रोड्यूस किया गया है। पेनल्टी फॉर अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस अभी मैंने आपको समझाया। ऐसे राइटिंग भी पहले आता था ZAT में, वो बंद कर दिया है। और टाइम ड्यूरेशन घटा दिया है, 3 घंटे 3.5 घंटे से 3 घंटे कर दिया है, और 25 मिनट एक्स्ट्रा। तो चलता है ये सब, तो आपको जाएगा ही। एनमैट हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, इसलिए एनमैट को स्किप करिए, नीचे जाए। सीमैट, सीमैट बेसिकली जो कैट में ना और जैट में 80 to 90 परसेंटाइल वाले इंस्टीट्यूट्स हैं, अगर तुम उनको टारगेट कर रहे हो और तुम्हारा कैट या जैट खराब जाता है तब तुम्हें सीमैट लिखना चाहिए। हड़बड़ी में सीमैट मत लिख दो। सीमैट में जो कैट में 80 to 90 परसेंटाइल वाले इंस्टीट्यूट्स हैं वही सब इंस्टीट्यूट्स आते हैं, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। बहुत अगर हम एक बार सीमैट के लिस्ट में जा सकते हैं साथ साथ, सीमैट का लिस्ट ऑफ कॉलेजेस जो है सीमैट के। सीमैट के कॉलेजेस, एक बच्चा अलायंस यूनिवर्सिटी, नहीं बिल्कुल नहीं, अलायंस यूनिवर्सिटी बेकार है, महा बेकार है, मतलब 100% गारंटी है तुम्हारे फेलियर की। ऐसे भी ना बहुत दिल पे पत्थर रख के बहुत इंस्टीट्यूट्स के नाम में डालता हूँ, बिकॉज 80 to 90 परसेंटाइल वाले बच्चे भी इंटरेस्टेड रहते हैं। उसके नीचे जाना तो पूरी तरह से हारीकिरी, यानी कि जापानीज में बोलते हैं सुसाइड है। तो सीमैट का भी तुम्हें भेजेंगे, जमनालाल बजाज एक मिराज है। मतलब मुझे एक ही लड़का, एक मेरा स्टूडेंट है शयान खान, उसको 99.99 परसेंटाइल आया था सीमैट में, तो उसका जमनालाल बजाज का कॉल था, इंटरव्यू में नहीं हुआ था, लेकिन बेचारे का वो सीरियस नहीं था इतना। अदरवाइज बहुत नामुमकिन जैसा है। वही GIM, ग्रेट लेक्स, मतलब वही तरह के इंस्टीट्यूट्स हैं, लेकिन वो बैठिए आपके साथ शेयर किया जाएगा। CMAT basically is for those students who didn't do well in CAT and those 80 to 90%, because 90, 95, 95 to 98 और 98 के ऊपर वाले CMAT नहीं लेंगे, 80 to 90 वाले लेंगे, और नीचे वाले तो सभी कुछ लेते हैं। तो उनमें आप बेसिकली फाइट मार सकते हैं CMAT के थ्रू भर के। सीमैट के पेपर में जाएंगे एक बार फटाफट। सीमैट के पेपर में जाए। सीमैट का पेपर बहुत ही आसान पेपर होता है, मतलब जितने भी एग्जाम्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, सबसे मुश्किल आपको इसमें कैट और IFT और जैट, ये 3 एक लेवल हो जाता है, फिर स्नैप एंड मैट का एक लेवल हो जाता है, दूसरा लेवल, और तीसरा लेवल आप ये सीमैट का लेवल ले सकते हो। आसान एग्जामिनेशन रहता है, बिकॉज इसमें मेजरली सिलेक्शन उस इंस्टीट्यूट्स के लिए जो 80 to 90 परसेंटाइल कैटेगरी वाले हैं, तो उतना फाइट नहीं रहता है, बहुत ही आसान पेपर रहता है। जीके भी इनका आसान आता है, इनमें बहुत टफ जीके नहीं आता है। So we will have class for and material for CMAT GK as well। नीचे जाइए एक बार। 3 घंटे का पेपर, 100 सवाल, मतलब बहुत टाइम भी रहता है, आसान सवाल भी रहता है।
दिक्कत नहीं होता है। माइकैट में आओ, माइकैट में इस बार एक कंफ्यूजन ये है भाई, मुद्रा इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग कम्युनिकेशन के लिए इंडिया के का नंबर 1 इंस्टीट्यूट है ये अहमदाबाद में, का खुद का एग्जाम होता है माइकैट। पहला, इसमें बहुत स्टेजेस है, इसमें बहुत दिक्कतें हैं। पहला स्टेज है या कैट या जैट या जीमैट में से एक आपको लेना होगा। फिर इनका एक साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा। अच्छा, साइकोमेट्रिक टेस्ट सुन के बच्चे एकदम घबरा जाते हैं, क्या है भाई साहब साइकोमेट्रिक टेस्ट क्या है? साइकोमेट्रिक टेस्ट कुछ नहीं है, सोचिए कोई मार्केटिंग का पोजीशन है, अब मार्केटिंग के पोजीशन के लिए साइकोमेट्रिक टेस्ट ले रहा है, तो साइकोमेट्रिक टेस्ट में क्या सवाल पूछेगा? सवाल रहेंगे, आप कॉफी आप एक कैफे में हैं और आप अकेले कॉफी पी रहे हैं, कुछ लोग बैठ के कुछ डिस्कस कर रहे हैं और वो जो डिस्कस कर रहे हैं उसमें आपकी भी दिलचस्पी है, तो क्या आप खुद जाके उसको उसमें बैठेंगे डिस्कशन में? तो हाँ बोलेंगे, तो मतलब कि आदमी मिलनसार है। नेचर ट्रेड्स जो है, तो कुछ जॉब के लिए कुछ नेचर ट्रेड्स, तो बेसिकली वो घुमा घुमा के वही सवाल पूछेंगे। साइकोमेट्रिक टेस्ट में जैसे माइकैट में आपको कैट जीमैट जैट में से कोई एक एग्जाम लेना होगा, फिर इनका एक साइकोमेट्रिक टेस्ट लेना होगा। साइकोमेट्रिक टेस्ट एक क्वालिफाइंग टेस्ट है, उसमें अगर आपका नेचर टेस्ट उनको ठीक लगेगा तो आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा, एसे टेस्ट, फिर वो आपका ठीक होगा, तब जाके आपका जो तीसरा सेक्शन सी है डायवर्जन में, आपको सब में कट ऑफ क्लियर करना पड़ेगा। इट्स अ लेंथी प्रोसेस। कैट भी लिखो, साइकोमेट्रिक टेस्ट भी लिखो, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी लिखो, सेक्शन सी डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट थिंकिंग भी लिखो, आपको बहुत कुछ लिखना होगा इसमें, तो इसके लिए अलग से तैयारी करनी पड़ेगी। एक अलग हम लोग माइका का एक्सक्लूसिव सेशन रख लेंगे, जिसमें जो बच्चों ने माइका में टॉप भी किया वो अपना शेयर करेंगे कैसे झटपट तैयारी कर सकते हैं बिना उतना समय बर्बाद करते हुए। या आपको हम लोग भेज देंगे, इसको पढ़ लेना। फिर जीपीआई है, यानी कि आपको सेक्शन ए में क्वालिफाई करना है, सेक्शन बी में क्वालिफाई करना है, सेक्शन सी में क्वालिफाई करना है, मिनिमम कैट परसेंटाइल या जेड परसेंटाइल भी चाहिए, तब जाके आपका जीपीआई होगा। फिर 30% वेटेज वो कैट को देंगे, 20% वेटेज माई कैट को देंगे और फिर 50% वेटेज जीपीआई को देंगे। तो ऐसा करके सो वी कैन गो टू दी अदर एग्जाम नाउ। माई कैट का तो ठीक है, हाँ आगे आगे बढ़िए। माइकैट जैसा आपको बोला दिसंबर में है और जैन में है, आप जैन भरिए सो दैट यू कैन प्रैक्टिस। मतलब देखिए फायदा ये क्या है, अगर आपका हो नहीं रहा है, प्रैक्टिस के लिए आपको टाइम मिलेगा। वी विल प्रैक्टिस मॉक माइकैट्स एंड ऑल। टिसनेट जो बच्चे एचआर में जाना चाहते हैं, बहुत ही बेहतरीन इंस्टीट्यूट, एक्सेलराय नंबर 1 इंस्टीट्यूट एचआर के लिए। उसके बाद टिस है, टिसनेट का भी यही एक प्रॉब्लम है कि पहले आपको टिसनेट देना होगा, पहले एक ही एग्जाम होता था टिसनेट, अब क्या है आपको टिसनेट भी देना होगा, टिसमैट भी देना होगा। टिसनेट जो पहला एग्जाम है, 3 सेक्शन है, एक जीके है, एक कॉन्ट है एलआर के साथ और एक इंग्लिश है। जीके का बहुत वेटेज है 40%, इसलिए टिस का जीके का अलग फोल्डर है जो सार्थक ने अभी दिखाया था, तो अलग से फोल्डर है, उसमें टिस का मटेरियल वगैरह ये सब रहता है। टिस जीके तीसरा है, तो ये आप लोग के पास ऑलरेडी है, इसको और हम एनरिच कर देंगे। उस फोल्डर में जाएंगे तो बहुत मटेरियल है, क्लिक भी कर देते हैं, बहुत सारा आपको मटेरियल मिलेगा और ये मटेरियल आपको पढ़ाया भी जाएगा। बट अभी क्यों पढ़ाएंगे, इसका एग्जाम अभी है ही नहीं, सारे एग्जाम बाद में है, तो अभी पढ़ के क्या कर लोगे? फिर टिस नेट क्वालिफाई करोगे, फिर तुम्हें टिस मैट लेना होगा। टिस मैट का जो पेपर है उसमें आपका बिजनेस अवेयरनेस हो गया, कॉम्प्रिहेंशन हो गया और डीआई हो गया, ये 3 चीजें आती है। तो बेसिकली आपको दो, जैसे माइकैट में आपको कैट जैट, जीमैट में एक कोई साइकोमेट्रिक भी, एसे टेस्ट भी, ऐसे टेस्ट में पिक्चर्स दे दिया तो आपको पिक्चर्स देके कुछ ऐड बनाना है, कोई स्टोरी बनानी है वो। फिर डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट थिंकिंग वाला भी सेक्शन हो गया। फिर जीपीआई, मल्टीपल स्टेजेस है वैसे टिस में, टिस नेट है, फिर टिस मैट है, इसकी अलग से तैयारी होगी। माइकैट हो गया, टिस हो गया। अभी हम लोग फिर बात करने वाले हैं, आप आगे बढ़ेंगे तो इरमा के बारे में, जो कि रूरल मैनेजमेंट का नंबर 1 इंस्टीट्यूट है इंडिया में। इसका एक छोटा सा 40 सवाल का जीके टेस्ट होता है, जिसको लोग बोलते हैं इरमा सैट। इसमें बेसिकली सोशियो इकोनॉमिक रिलेटेड जीके टेस्ट होता है, अलग तरह का जीके आएगा, फूड प्रोग्राम्स को लेके, लिटरेसी मिशन को लेके, बिकॉज इंस्टीट्यूट है टाटा इंस्टीट्यूट, इरमा है रूरल मैनेजमेंट को लेके, तो वो लोग पूछेंगे ऐसा चीज जो रूरल मैनेजमेंट से रिलेटेड हो, तो उसकी भी अलग थोड़ी बहुत तैयारी होती है। और इसके साथ साथ ये नहीं कि सिर्फ इरमा सैट लेने से काम चलेगा, आपको कैट भी लिखना होगा, इरमा सैट भी लिखना होगा, isn't it? ये सब आपको और अच्छे से करके हम लोग
भेज देंगे, बट अभी कुछ भरना नहीं, सबका डेडलाइन, एक बार एग्जाम डेडलाइन में जाइए नीचे, अब सबका डेडलाइन देखिए भी है तो फिर क्यों भरेंगे आप? एग्जाम डेट स्नैप 20th दिसंबर, देन 6th and 9th में से, एनमैट नवंबर दिसंबर जनवरी, जैड 3rd जैन, सीमैट 24th जैन, माईकैट का सेकंड अटेम्प्ट लोगे 30th जैन, इरमा 10th to 29th फरवरी। तो उस समय अच्छा क्या हो रहा होगा ना, ये समय जीके बेस्ड एग्जाम्स का जब टाइम आ रहा होगा तो उस समय जीडीपीआई का भी टाइम चल रहा होगा, तो फिर जीके पढ़ने का सही में फायदा होगा, जनरल अवेयरनेस पढ़ने का। अभी क्या है, स्टैंड अलोन जनरल अवेयरनेस पढ़ के तुम्हें कोई भी फायदा नहीं होने वाला। आगे बढ़िए। IIFT अभी तक डेट नहीं निकला है, और टिसनेट अभी हम लोग बात कर रहे थे, टेंटेटिव लिखा है 9th जैन, हो सकता है और डिलेड। So we have covered all this, and we will be basically sending all this data to you so that you guys won't have a problem. Still, if you have a problem, then all of you have my number, you can share my number as well. Last का जो 4 हफ्ता है वो बेसिकली कैट के लिए है। इसमें भी ये नहीं कि एक जैसा ही पढ़ाई कर रहे हैं, एक जैसा ही काम कर रहे हैं। आप दिन को भागों में डिवाइड करें, टेस्ट लें, रिवीजन करें, जो छूट गया है पढ़ना अभी भी उसको पढ़ सकते हैं, ये नहीं कि अब तो दिन ही नहीं बचे हैं कैसे पढ़ लें। बट अगर बहुत पढ़ाई बची है तो प्रायोरिटाइज करें अपनी पढ़ाई को, टॉपिक वाइज आपको पता है कौन ज्यादा आता है, ये सब करके आप प्रायोरिटाइज भी कर सकते हैं। इफ यू कीप डूइंग दिस, आई एम 101% श्योर कि आपका कैट का एग्जामिनेशन अच्छा जाएगा। पैनिक करना, सर पकड़ के बैठ जाना, क्या होगा अब तो बहुत लेट हो गया, किसका क्या है। एक मैंने अभी सर्कुलेट किया था, एक घटिया स्टूडेंट है, सबको झूठ बोल दिया था कि आई अहमदाबाद में पढ़ता है और सबको उल्लू बना रहा था। झूठ फरेब से तो चलने वाला है नहीं, तो आप दूसरे क्या अपना एमकैट परसेंटाइल बता रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, उस पर आप जाओ ही मत। अपना परफॉर्मेंस देखो, एनालिसिस करते हो तो डोंट लुक एट अदर्स, लुक एट क्या मैं इससे बेटर कर सकता था कि नहीं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। काफी यहाँ पर मैसेजेस आए हुए हैं, बहुत सारे डाउट्स हैं। हाउ टू रिवाइज कॉन्ट्स, पहले तो हाउ टू रिवाइज कॉन्ट अगर आप लिख रहे हो तो टेस्ट भी कॉन्ट का अपने आप में एक रिवीजन होता है, तो टेस्ट भी लेना है। वो टेस्ट में आपको लग रहा है कि जो एरियाज में आपका ज्यादा गलती हो रहा है, ज्यादा वीक आपको पता होगा, उसको पहले रिवीजन करो। रिवीजन उन चीजों का पहले करो जिसमें बहुत ही तुम्हें जरूरत लग रही है रिवीजन की। सर आई हैव 50% इन ग्रेजुएशन, 86, 19, 10th एंड 12th। देखो इतने सारे डाउट्स हैं, मुझे लगता है मेरा सर फट जाएगा, तो इसका एक दूसरा तरीका ये है कि एक ईमेल आईडी लिख दो तुम बच्चों को क्या करना है, इस ईमेल आईडी पे अपना डाउट भेजना है। मैं कल मैक्सिमम परसों में टाइम निकाल के सबको इंडिविजुअली रिप्लाई कर दूंगा। अपना जो भी तुम्हें डाउट है एक ईमेल आईडी लिख दो ना साथ साथ। हाँ लिख दो, कोई भी डाउट है तुम्हारा, तुम अपना इस ईमेल आईडी में जो भी सार्थक सर शेयर करने वाले हैं उसमें भेज दो, और मैं रिप्लाई करूंगा उसमें 101% कल परसों में। excelsior.time.lucknow@gmail.com पे भेजो डाउट, फिर से उसको पोस्ट कर दो 4-5 बार, 4 to 5 times you should post that email ID. Preparation strategy from now on to get 99 percentile. First, the major topics have to be done from basic. Some things which you cannot skip, as I told you, nobody can skip arithmetic in CAT, or like geometry mensuration भी आते हैं सवाल, अलजेब्रा के भी कुछ आते हैं, skip नहीं कर सकते हैं। प्लस 99 परसेंटाइल आने के पहले तुम्हें स्ट्रेंथ वीकनेस एनालिसिस करनी होगी। जो बहुत वीक एरियाज हैं उनके आसान क्वेश्चन करना होगा, उसका प्रैक्टिस करना होगा, और जो तुम्हारे टॉपिक्स स्ट्रॉन्ग हैं उसमें डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी करने का तुम्हें अपना स्टैमिना बिल्ड करना होगा। सबसे पहले तो बहुत बच्चों को टेस्ट का स्टैमिना नहीं होता, मतलब उतने देर वो टेस्ट नहीं ले पाते, 2 घंटे बैठ नहीं पाते, तो वो डेवलप करना होगा। अब अगर मैं चाहूँ कि जैसे मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, जब मैं कैट की तैयारी कर रहा था उसमें पीएनसी स्ट्रॉन्ग नहीं था, अगर मैं चाहूँ कि पीएनसी के मुश्किल सवाल करूं और वो नहीं हो तो निराश होकर बैठे रहूं दिन भर कि मेरा कैट नहीं होगा, तो टोटल वेस्ट ऑफ टाइम। नो योरसेल्फ, नो योर स्ट्रेंथ, जिसमें स्ट्रेंथ है उसमें चौके छक्के मारोगे। ये वैसे ही है कि क्रिकेटर हो, बैट्समैन हो और ऑफ स्पिनर को बहुत अच्छे से धो सकते हो क्योंकि बहुत नेचुरल है, तुम्हारे राइट हैंडेड हो तुम
तो कोई है राइट हैंडेड ऑफ स्पिनर, उसको बहुत अच्छी तरह से तुम पीट देते हो, लेकिन बाउंसर्स में थोड़ा दिक्कत होता है तो उसको थोड़ा देख देख के खेलते हो। तुम्हें पूरी जो आने वाला जो 4 हफ्ता है और अवेयर रहना होगा, पढ़ाई तो करना ही रहना होगा, पढ़ना तो बहुत जरूरी है कि आपको अपने घंटे देते रहने हैं, बट साथ में ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या प्लानिंग होगी तुम्हारी टेस्ट में, कि भाई इस तरह के सवाल को तो करना ही करना है, इस तरह में चलो 50% थोड़ा बहुत, यू हैव टू बी वेरी अवेयर, वेरी वेरी कॉन्शियस। I think too many questions are popping out. I don't know what to answer. With a few students who are they're not very confident about CAT 20 what they should. See, even Sarthak is saying that some of the students have posted that they are not very confident about CAT 20 what to do. Even if you are not confident about CAT 20, there are still 4 weeks. तो पहले 4 हफ्ते तो मतलब आप CAT 21 तो बाद की बात है, ये 4 हफ्ते को तो अपना पूरा यूटिलाइज करो। मैं आपको बता रहा हूँ ये 4 हफ्ते 12 हफ्ते के प्रिपरेशन के मुकाबले होते हैं। कोई भी अच्छा परफॉर्मर होगा वो लास्ट लैप में सबसे ज्यादा फाइट मारेगा। तो ये तुम अभी मत सोचो कि बहुत देर हो गया, 4 हफ्ता है, बहुत देर नहीं हुआ है। अरे 99 का नहीं अपेक्षा कर रहे हो, पहली बार कैट लिख रहे हो, अभी तैयारी करो, 90 आ जाएगा, फाइट तो मारेगा आदमी, इतना क्यों। मैं लिख दूंगा, तुम लोग सब फिर से उसको 4-5 बार तुम पोस्ट कर दो, 5-6 बार पोस्ट कर दो। मैं चाहता हूं कि जो भी आपका डाउट है, ये होस्ट टू एवरीवन में जो ईमेल आईडी सार्थक डाल रहा है excelsior.time.lucknow@gmail.com, इस पे आप अपने क्वेरीज भेज दो, मैं आपको 48 आवर्स में सब बच्चों को क्वेरीज कर दूंगा। टीबीसी पे भी डाल दिया है कि उस पे आप, और प्लस ये सारा जो हम डिस्कस कर रहे हैं और भी मटेरियल जो आपको हेल्प करेगा अदर एग्जाम्स के अंडरस्टैंडिंग में, टेस्ट पैटर्न में, बी स्कूल एप्लीकेशन में क्या फीस है, क्या सीट है, वो सब आपको हम लोग भेज देंगे। शशांक मेहरोत्रा +1 अनुराग, पता नहीं यार, ये बड़ा मुश्किल भी होता है समझना +1 वाला किस चीज का +1। क्वांट एंड बीआरसी को 98% है। तुम लोग सब ये भेज दो, आप लोग बोलेंगे 98 के लिए क्या चाहिए, 95 के लिए क्या चाहिए, 97 के लिए क्या चाहिए, 99, आप लोग भेज दो ये क्वेरी, मैं आप लोग को इंडिविजुअली रिस्पॉन्ड करूंगा, खुद से रिस्पॉन्ड करूंगा। और जहां भी मुझे लगेगा कि फोन पे बताने की जरूरत है क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड कुछ पूछा है लड़के ने, तो फिर मैं बोलूंगा कि मेरे को मेरे नंबर पे कॉल कर दें। तो मेरे नंबर पे आप लोग क्वेरी ये भी कर सकते हो, टेलीग्राम भी कर सकते हो, मेरा नंबर भी डाल दो सार्थक, आप चाहें तो मेल सिर्फ नहीं ऑप्शन है, मेरे पर्सनल नंबर पे आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप कर दो अपना क्वेरी लिख के, तो मैं आपको रिस्पॉन्ड करूंगा, आई विल रिस्पॉन्ड फॉर श्योर, सारे बच्चों को करूंगा। कुछ बच्चे पुराने टाइम के स्टूडेंट्स हैं या कुछ बच्चे टाइम के नहीं भी अगर स्टूडेंट हैं इस वेबिनार में, तो उनको मैं अभी क्या तुम देखोगे पिछले कुछ वेबिनार के मुकाबले में थोड़ा कम एनिमेटेड हूँ, कूद कम रहा हूँ, क्यों, क्योंकि भाई अब टाइम आ गया है, आपके लिए भी अब टाइम आ गया है, मतलब बहुत फोकस की जरूरत है, बहुत ही मेहनत की जरूरत है, आपको बहुत एकांत रहना पड़ेगा, थोड़ा कम एक्साइटेड होना पड़ेगा, अपना टाइमिंग सेट करना पड़ेगा, परेशान नहीं, बिकॉज कुछ आप सक्सेस से नहीं सीखते हैं, आप फेलियर से सीखते हैं। तो आपके जो मॉक्स हैं जिनमें आपके बहुत घटिया स्कोर आ रहे हैं, वही आपको टॉप कराएगा कैट में, वही आपको अच्छा परसेंटाइल दिलाएगा। कोई मॉक दिया, बहुत अच्छा स्कोर आ गया, नाच रहा है आदमी, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, वो भी अच्छी बात है इमोशंस के लिए हैप्पी रहना, बट जो मॉक्स खराब हैं उनमें ही छुपा हुआ है आपके सक्सेसफुल होने का राज। तो प्लीज जब आप कोई ना खराब परफॉर्म करते हो टेस्ट में, तो उसको लेकर अपना सर मत पीटा करो कि अरे क्या यार मेरा तो होने का चांस नहीं, अरे वो तो पढ़ने का मौका है, अच्छा है, भगवान को बोलो कि वो आज दे दिया है, मॉक में दिया है तुम्हें वो सब मुश्किल क्वेश्चंस, एक्चुअल कैट में नहीं दिया है। और एक बार जब तुम एनालाइज कर लेते हो तब तो लाइक ऑफ कोर्स तुम रिपीट, प्रॉब्लम क्या है, जैसे लोग बोलते हैं कि गलती आदमी सभी करते हैं गलती, लेकिन गलती करके जो सीख नहीं रहा है, वैसे ही आप जब एमकैट में मॉक्स में कोई क्वेश्चन नहीं कर पाते हो तो वो गलत बात नहीं है, लेकिन जब आप उसका एनालिसिस कर रहे हो, उसका सोल्यूशन देख रहे हो, उसके बाद उसको नहीं समझ पा रहे हो तो वो दिक्कत है। एक बार वो आप समझ गए अच्छे से, इतना अच्छा से समझ होना चाहिए कि उस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए, सेट आए, वेरिएशन आए, यू आर एबल टू डू इट। ऑल द बेस्ट नाउ, गुड इवनिंग। आई थिंक you guys will individually ask me doubts. If Sarthak, you can again put my number as well. Don't worry, ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा जिसका डाउट में नहीं रिप्लाई करूंगा, आंसर करूंगा,
टेलीग्राम, व्हाट्सएप, मेल, फोन के माध्यम से सबके डाउट्स द नेक्स्ट 4 weeks I am available 24/7. If you have any doubt, I will definitely clarify your doubt. Because next 28 days matter more than the last 1 year. तो कुछ बच्चे 1 साल से भी तैयारी कर रहे हैं, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये 28 दिन जो आने वाला है। प्लस ये ओमेट्स का हेडेक लेना बंद करो, अभी ओमेट्स नहीं है। डेडलाइन का हेडेक लेना बंद करो, हम लोग तुमको बार बार याद दिलाएंगे कि अभी डेडलाइन में टाइम है। एवरीथिंग विल बी स्पून फेड टू यू, जस्ट फोकस ऑन कैट। अभी हम लोग आने वाले 4 हफ्ते क्लास नहीं बंद करेंगे, क्लासेस भी चलते रहेंगी, अपना एक्स्ट्रा हैंडआउट से, डिफिकल्ट हैंडआउट से वो भी पढ़ाते रहेंगे, प्लस साथ में हम लोग अपना डाउट सेशन भी करते रहेंगे, तो डाउट सेशन भी चलता रहेगा। जो बच्चे चाह रहे हैं क्लास करना तो उनको हायर DILR के हैंडआउट्स और मुश्किल VA RC और ये सब भी हम लोग क्लास देते रहेंगे। तो यू कैन टेक कीप ऑन अटेंडिंग क्लासेस एज वेल। क्लास अटेंड करने से क्या है, आदमी को थोड़ा एक ब्रेक 2 घंटे का दिन भर में मिल जाता है, थोड़ा कनेक्टेड भी हो जाता है अपने पढ़ाई करने वाले सर्कल पे। थैंक यू, all the best, all the best. Be a champion. A champion is one who is not born as a champion. A champion is one who keeps fighting, keeps trying, keeps getting up and does not give up. He knows that the game never ends, the game is endless, so why lose hope? When you lose hope, that is the real loss. And 4 weeks is a pretty long time to make a turnaround. हम लोग बिजनेस में बात करते हैं ना, टर्न अराउंड करने के लिए 4 हफ्ते टर्न अराउंड के लिए बहुत बड़ी बात होती है। You should think of the best percentile. Thank you. All the best.